Just going to start with कुछ basic ideas, कुछ terms वगैरह, because एक चीज़ ये कि जो title है, it's computational, it's not parametric, it's not algorithmic, ठीक है, even though parametric usually word जो है associate किया जाता है, so I'm even going to touch on that कि why am I calling it computational? This is something कि जो कि I realized after I started teaching this. जो basis है वो it's still parametric, और ये जो terms हैं they are pretty much interchangeable. So आप computational को, आप parametric को, वो बहुत advanced level पे जाके lot of architects and researchers they are getting down to very specific scale. Should we really call it parametric or should we call it something else? But जो term है वो it started with the idea of parametric. ये तो थोड़ी सी ज़रा स्कूल लेवल मेट्रिक एफएससी लेवल की थोड़ी सी मैथ्स भी आ जाती है कि मैथमेटिक्स से ये टर्म ली गई है. सो लाइक मैथमेटिक्स में यू हैव पैरामीट्रिक इक्वेशंस व्हिच आर सिंपल एक्स और वाई की जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं. सो वहाँ से पैरामीट्रिक डिज़ाइन का जो था सारा आइडिया स्टार्ट हुआ था, बट नॉट इन द सेंस कि स्टार्ट लाइक ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट नहीं होता. इट वाज सॉर्ट ऑफ दिस ग्रेजुअल एवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर की एक्सट्रीम में. उसके बाद 1960s और 70s में जाके शिफ्ट होना शुरू हो गया, बट जो ओरिजिन है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन में है. सो विच इज बेसिकली जो सॉर्ट ऑफ एक विकिपीडिया डेफिनेशन है कि एनी ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज और दोज क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू वन अनदर थ्रू सम फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन. सो उसमें आप वेरिएबल्स को, क्वांटिटीज को, पैरामीटर्स को, दे आर प्रीटी मच द सेम थिंग. सो इसका जो एक बेसिक एग्जांपल है, that is for example this equation y is equal to 2 plus 3x. so इसमें जो quantity है जो calculate हो रही है वो y है, और x की जो भी value होगी उस पे depend करता है y. so through this equation x और y का एक relationship बना हुआ है, and of course x की कोई भी value हो सकती है. so this is basically parametric relationship, और this is basically the very आप कह लो foundation of parametric design कि two different things related to one another through some explicit function. addition अगर mathematically अगर बात करनी है. so but ये है कि क्योंकि we are going to be focusing on design, so in design a lot of times is visual, so it would be better कि अगर हम इस equation को visually imagine करें तो it would be a straight line अगर हम वो x और y पे हम इसको plot करना शुरू करते हैं. so this is simple enough. so x की different values हैं 1 से लेके 10 तक, and उसकी वजह से you have different values of y, so एक straight line बनती है. so for us this is basically two dimensional graphic बननी शुरू हो जाती है, एक linear equation जिसको कहते हैं. of course जितनी आपकी complex equation होती जाएगी वो different उसका एक visual outcome होगा. so simple parametric equation तो line बना लेती है, and you can have as many values as you want. you can change उसके जो अगर स्कूल की मैथ्स थोड़ी सी याद है तो ये जो इक्वेशन है इसमें 3 जो होता है वो ग्रेडियंट होता है एंड 2 जो होता है वो शिफ्ट होता है. सो लाइक 3 की वैल्यू अगर चेंज होगी तो लाइन का स्लोप चेंज होना शुरू हो जाएगा. सो दैट कैन बी इवन अ थर्ड वेरिएबल, हम उसको z भी कह सकते हैं कि ताकि हम लाइन का स्लोप भी हम चेंज करना शुरू करते हैं. बट एसेंशियली ये है कि the idea कि कोई भी geometrical entity, line है, shape है, curve है, they're all governed by some sort of a rule. कोई ना कोई mathematical rule है जिसकी वजह से वो कोई ना कोई shape जो है 2D जो है वो form हो रही है, और उसमें उसके अंदर जो भी variables होंगे उनको आप change करेंगे तो shape की dimensions change होनी शुरू हो जाएंगी. Of course line जो है वो बहुत simple example है. अगर आप थोड़ा सा अगर complex level पे जाना चाहते हैं तो you have such examples such as the butterfly curve, जो कि एक trigonometric function है और उसका जो curve का एक sort of एक outcome है because of sort of इसकी aesthetic nature, वो उसका एक नाम है the butterfly curve. of course calculus में इसकी, maths में इसकी different application है, but architecture तो यही है ना कि we take an idea tool और हम उसको change कर लेते हैं, हम उसको अपने purpose के लिए. so this could be used to create a design, to generate a form, anything, या इससे कोई similar equation भी हो सकती है. but this is just an example के how a visual or a geometrical entity can be controlled by, you have your parameters है, you have your function sine cos, and then you have a domain as well कि वो 0 से लेके 12 पाई की डोमेन के अंदर अंदर ही वो रिपीट कर रहा फंक्शन. दैट्स व्हाई यू हैव दीस कर्व्स.
सो बेसिकली कि एनी डिज़ाइन, सो पैरामीट्रिक डिज़ाइन वुड देन मीन कि एनी डिज़ाइन जिसको आप मैथमेटिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हो, सो दैट वुड बी पैरामीट्रिक डिज़ाइन, बेसिक डेफिनेशन. बट क्यों ये करना है, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन. कि हमें क्या मौत पड़ी हुई कि हम जो है हम मैथ्स में भी हम जाना शुरू हो जाएं, कैलकुलस और इन चीज़ों में भी हम चलना शुरू हो जाएं. वन थिंग इज दैट के अब जैसा जैसे कल्चर भी चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कल्चर चेंज होता है, पीपल थिंक अबाउट आर्किटेक्चर इन डिफरेंट मैनर्स. ठीक है, आपके मॉडर्न मूवमेंट में डिफरेंट मटेरियल्स थे तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट आर्किटेक्चर डिफरेंटली, कल्चर शिफ्ट आना शुरू हो जाता है. जी श्योर, मैं इनसे जरा पूछ लेता हूँ. ऊपर को सो थिंग इज कि जिस तरह कल्चर में शिफ्ट आता है, सिविलाइजेशन में शिफ्ट आता है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिजाइन डिफरेंटली. जो राइट नाउ सिचुएशन इज दैट pretty much we are dealing with algorithms. वो जो डॉक्यूमेंट्री मैंने आप लोगों से शेयर की थी, that was sort of like a brief hint के हमारे कल्चर में कितना algorithms, computers, टेक्नोलॉजी का जो है वो रोल आना शुरू हो गया. So everything that we do these days, like socially हम even जिस तरह interact करते हैं, right, हम जिस तरह like WhatsApp के थ्रू यहाँ पे सारा coordinate किया है, so all of a sudden हमारी लाइफ का जो है ना बहुत important part बन गया code, variables, data, digits, numbers, राइट. सो वो इसलिए और ज़्यादा irrelevant होना शुरू हो जाता है. एंड अनदर थिंग कि वाई दिस इज रेलिवेंट फॉर डिज़ाइन इज दैट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो डिज़ाइन ऑलरेडी एक पैरामीट्रिक प्रोसेस है. इवन नील लीच जो कि एक आर्किटेक्चर का राइटर है, इवन वो भी आर्ग्यू करता है कि आर्किटेक्चर हैज़ ऑलवेज बीन पैरामीट्रिक. इसलिए भी वो इस टर्म के बारे में थोड़ा सा ज़रा डाउटफुल होता है, थोड़ा सा स्केप्टिक होता है कि शुड वी रियली कॉल इट पैरामीट्रिक डिज़ाइन. क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज अगर हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, लेट्स से आप स्केचअप में कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो एंड बाय लॉ डिक्टेट करता है कि आपने हाइट जो है कम करनी है. सो ऑल ऑफ अ सडन यू आर डीलिंग विद अ पैरामीटर जो कि बिल्डिंग का हाइट है. सो आप वो हाइट तो डिक्रीज कर रहे हो. सो बिल्डिंग की हाइट जो है वो बाय लॉज के साथ एक फंक्शन में एग्जिस्ट कर रही है. सो टेक्निकली दैट इज स्टिल एक पैरामीट्रिक प्रोसेस, राइट. सो डिज़ाइन हमेशा हम whether consciously, subconsciously, we are always dealing with some sort of constraints, some sort of function, some sort of variable, और उन्हीं को ही हम tweak करके. the only difference is कि normally हमारे studios में और offices में इतना explicitly या इतना specifically हम functions की बात नहीं करते, ना ही हम उन relationships की बात करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा, एक आपका वो स्टूडियो में वो सिखाते हैं जो स्टेयर का एक फॉर्मूला होता है कि राइजर और ट्रेड का ये रिलेशनशिप है. अगेन दैट इज अ पैरामीट्रिक सिस्टम. तो सिंस डिजाइन ऑलरेडी उस लाइन पे चल रहे हैं, तो देन दैट मीन्स कि आज फिर और भी ज़्यादा रेलिवेंट है. देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स मोर एक्सप्लिसिटली. तो वी आर ऑलवेज डीलिंग विद डिफरेंट फोर्सेज. सो फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी द एरिया ऑफ योर साइट, एर्गोनॉमिक्स आ जाती है, आपके सारे ह्यूमन स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो डिक्टेटिंग आपके डिज़ाइन की लिमिटेशंस. क्लाइमेट बहुत कॉमन है, दैट इज समथिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स आप शेड डिज़ाइन कर रहे होते हो अपने वो साइट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से. कल्चर हो गया, कल्चर अक्सर आपके माइंड में सॉर्ट ऑफ डिक्टेट कर रहा होता है कि आप डिज़ाइन में क्या कर सकते हो. कहीं पे आप स्क्रीन ऐड कर रहे हो, कहीं पे आप विजिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो. देन ऑफ कोर्स ग्रेविटी है, देयर आर सम फिजिकल फोर्सेज जिनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो स्ट्रक्चर में आना शुरू हो जाता है. देन देयर आर बजट कंस्ट्रेंट. सो कॉन्स्टेंटली हम पैरामीटर्स के साथ हम डील कर रहे होते हैं. But now we have the tools to actually do that in a more क्या कहें robust manner. So वो जिसको कहें not informally but formally, so that way we can explore more. So एक analogy would be कि जो भी आपका design process होगा, when that interacts with all the different forces and limitations, तो वो आपका design outcome जो है वो शुरू निकलना शुरू हो जाएगा. थोड़ा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं. सिंस यहाँ पे सारे आर्किटेक्चर के बैठे हुए हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने गॉडी का नाम सुना हुआ होगा. सो गॉडी को यूजुअली बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है. अगेन दैट्स सॉर्ट ऑफ ट्रू एंड नॉट ट्रू, बिकॉज गॉडी वाज नॉट द ओनली वन अपने टाइम पे जो कि इन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था.
बट उसका जो क्रेडिट जाता है वो ये जाता है कि एक तो वो बहुत हाई लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी पे लेकर गया था कंप्यूटेशन को, और ये कि उसने डिफरेंट लोगों की उस टाइम से जितना उनका नॉलेज था उसको उसने एक जगह पे उसने इकट्ठा किया, तो दैट्स व्हाई गॉडी को यूजुअली एज अ रेफरेंस लिया जाता है. सो कॉलोनिया गोयल जो है वो दैट इज हिज मेन जो स्ट्रक्चर है जिसका यूजुअली एग्जांपल कंप्यूटेशन डिज़ाइन में या पैरामीट्रिक डिज़ाइन में डिस्कस किया जाता है कि he actually created this physical model and that became the basis of his structure formation. ये फिनिश नहीं हुआ था बट इसकी जितनी भी वर्किंग थी वो क्लियर थी. सो उसका जो प्रोसेस था इन अ वेरी सिंपल मैनर, सो आप इमेजिन कर लो कि यू हैव टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन स्पेस एंड देन यू टेक अ पीस ऑफ थ्रेड जो कि एक्चुअली लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड देन यू सस्पेंड देम इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. After a while, of course, under gravity or thread का load and depending कि आपके fixed points कहाँ पे, it will start forming this curve, जिसको catenary curve कहते हैं. So he started experimenting with all these curves and fixed points. What he started doing was कि इसको actually 2 साल लगे थे सिर्फ model develop करने में. So what he started doing was he started adding weights different points में. तो उससे क्या होता था कि वो weight plus gravity, सो वो कर्व्स की जो थी डायरेक्शन जो थी वो शिफ्ट होना शुरू हो जाती थी. उस टाइम पे आर्किटेक्ट्स ने ये रियलाइज कर लिया हुआ था, और गॉडी वाज वन ऑफ देम, कि अगर आपका जो कर्व है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है अंडर ग्रेविटी, तो अगर आप उसको वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है. सो ही बेसिकली स्टार्टेड लिंकिंग ऑल दीज थ्रेड्स एंड वेट्स. वो जो हैंगिंग वेट है वो यहाँ पे ये छोटे वो बैग्स के अंदर है, ये सारे के सारे थ्रेड्स हैं, तो ये बीच में कहीं कहीं पे कर्व्स नजर आ रहे हैं, जितने भी कर्व्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं. जो उसका रिजल्टिंग मॉडल था वो कुछ इस तरह का था, एक सस्पेंडेड बॉडी, और इसके अंदर ये डिफरेंट जो थे कर्व्स जो थे वो फॉर्म हो रहे थे, और हर कर्व जो था वो 2 फिक्स पॉइंट्स के बीच में था और मल्टीपल वेट्स हैंग कर रहे थे, और फिर वहां से फिर मजीद कर्व्स फॉर्म हो रहे थे. So what they understood was कि अगर तो ये curves जो है वो equilibrium में while hanging, तो that means कि अगर आप उसको invert कर दोगे तो सारा का सारा load जो होगा वो आपका equally distribute हो जाएगा. And that's what he did. He actually placed a mirror underneath, और वहाँ से उसने सारी की सारी जो structural drawings थी वो वहाँ से उसने निकाली थी. This is actually one of the galleries जहाँ पे ये model छत से suspend किया हुआ नीचे sort of एक mirror रखा हुआ है. So you get the exact structure जो कि गाउडी ने prepare किया था. अब इसको हम कह सकते हैं कि कंप्यूटेशनल मॉडल. क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोर्सेस हैं, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल्स इसके अंदर कौन कौन से हैं? सो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की लेंथ, अगर उसको हम कम या ज़्यादा करेंगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा. जो पॉइंट्स उसने जो फिक्स किए हुए थे उनको हम करीब या दूर करेंगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है. एंड कितना लोड वो एक कर्व पे डाल रहा है. सो वो फिजिक्स के अंदर अंदर वो पूरा का पूरा एक पैरामीट्रिक मॉडल बन जाता है. ही डिड नॉट राइट डाउन एनी इक्वेशंस, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं थी. देयर वाज सिंपली एक फिजिकल मॉडल व्हिच वाज एक्टिंग लाइक अ पैरामीट्रिक मॉडल. सो हम वुड लाइक ये भी नहीं कह सकते कि हाँ दिस इज द फर्स्ट स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ कंप्यूटेशनल डिजाइन. यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर गॉडी को शायद कंप्यूटर दे दिया जाता वो भी प्रॉब्ली शायद यही हरकत ग्रासहॉपर में कर रहा होता. But then there's also this local relevance, जो कि again वो context की भी बात आ जाती है कि सब कॉन्टिनेंट में specifically there's a history of parametric design, but वो अक्सर लोग उसको इस्लामिक आर्ट की उस तरह से बात नहीं करते, because इस्लामिक आर्ट के जितने आपके पैटर्न फॉर्मेशन रूल्स हैं they are also built on very specific rules, कि रेशो क्या होनी चाहिए, डिवीजन क्या होनी चाहिए, एंड इफ यू चेंज दोज वेरिएबल्स तो उसका जो पैटर्न का आउटकम है वो डिफरेंट होना शुरू हो जाता है और वो फंक्शन जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है. सो लोकली यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ दैट हैपनिंग, कि जो क्राफ्ट्समैन जो थे वो अंडरस्टैंड करते थे कि हाउ डू यू डिज़ाइन थ्रू पैरामीटर्स. ऑफ कोर्स मे बी वो शायद डिफरेंट वर्ड्स उसके लिए वो लेते थे, वो उसकी एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस थी उन रूल्स की, उनको कॉस्मिक रूल्स के तौर पे लिया जाता था. एंड ना सिर्फ 2D बट इवन 3 डायमेंशनल भी जो है स्ट्रक्चर्स पे, मुकरनस पे, जालियों पे ये काम हो रहा था. इवन राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ रिसर्चर्स जिन्होंने बेसिकली रिवर्स इंजीनियर किया है और इस्लामिक आर्ट और पैटर्न्स में से उन्होंने फिर मैथमेटिकल मॉडल्स निकाले जस्ट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. तो हम ये भी कह सकते हैं कि श्योर
like Gaudi, this is sort of like a local example of parametric design. But if we want to be very specific about computation, so that happens in 1960s, 1963 to be specific, जहाँ पे Ivan Sutherland, who was not an architect or a designer, he was actually a mathematician. And he came up with Sketchpad, this program for his PhD thesis. और this was the first ever computer based drawing tool. बहुत basic था, बहुत limited functions थे. You could just draw some very basic shapes, circles, squares, rectangles. बहुत slow होता था. उस टाइम में जो कंप्यूटर्स थे वो थे भी मिलिट्री के पास, तो उनकी लैब के अंदर ये प्रोग्राम डेवलप हुआ. एंड ये लोगों के लिए एज सच अवेलेबल भी नहीं था. आर्किटेक्ट्स के पास ये टूल्स बहुत बाद में, लाइक अराउंड 1980s, जब पर्सनल कंप्यूटर्स आने शुरू हुए हैं. बट ये प्रोग्राम इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ऑटोकैड की अपनी हिस्ट्री है, इलस्ट्रेटर, वो सारे. बट स्केच पैड में आइवन सदरलैंड ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, वो था कंस्ट्रेंट्स का सिस्टम. उसने एक्चुअली सॉफ्टवेयर के अंदर उसने प्रोग्राम किया था कि एज अ डिज़ाइनर, रादर देन क्रिएटिंग शेप्स डायरेक्टली, यू कुड सिंपली डिफाइन द रूल्स. पैरामीटर्स आप बता सकते हो कि अगर एक सर्कल होगा तो उसके रिलेशनशिप में एक रेक्टेंगल किस तरह ड्रॉ होगा, तो ताकि अगर सर्कल के अंदर चेंजेस आती हैं तो रेक्टेंगल के अंदर इफेक्ट होगी. सो दिस वाज द फर्स्ट स्पेसिफिक एग्जांपल पैरामीट्रिक डिज़ाइन का. बट ऑफ कोर्स डिज़ाइनर्स को टाइम लगा 20-30 ईयर्स, और उसके बाद जो है वो sort of relevant हो गया क्योंकि computers बेहतर हो गए. It became more relevant क्योंकि now we're in the age of algorithms. So a lot of contemporary जो architecture के जो writers हैं या critics हैं, वो तो even ये भी push करें कि जो architects in the next 5-10 years should not be even designing visually but through code, कि उनको programming, उनको C++ उनको सीख लेनी चाहिए. और MIT ने शुरू कर दिया हुआ है, काफ़ी स्कूल्स ने अराउंड द वर्ल्ड शुरू कर लिया हुआ है ये सिस्टम. तो एज ऑफ नाउ जो कुछ एडवांटेजेस हैं पैरामीट्रिक डिज़ाइन के, जो डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं, वो ये कि बिकॉज आप कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ले लो, आप कभी भी एक ऑप्शन के साथ नहीं काम कर रहे हो. यू यूजली डीलिंग विद मल्टीपल ऑप्शंस, अपने क्लाइंट के लिए, अपने साइट के लिए, डिफरेंट आप चीज़ें उसके अंदर टेस्ट कर रहे होते हो. बट ट्रेडिशनल डिज़ाइन मेथड में क्या होता है, फॉर लेट्स सपोज अगर आप स्केचअप की बात करते हो, सो यू मेक वन डिज़ाइन, देन यू नीड टू मेक सम चेंजेस, तो आप काफ़ी पीछे आप जाते हो और फिर आप चेंजेस करते हो, फिर आप उसको कंप्लीट करते हो, एंड देन यू कीप गोइंग बैक. उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट जो है वो यूज़ होती है. पैरामीट्रिक में फ़ायदा ये है कि बिकॉज वी हैव नाउ फास्ट इनफ कंप्यूटर्स, यू कैन एक्चुअली लेट्स से डेवलप 100 डिफरेंट प्रोटोटाइप्स एट द सेम टाइम. आप सिर्फ ये बता देते हो, आप डिफाइन कर दो कि ओके 0 से लेके 10 तक ऑप्शंस बनानी है, और वो सारी की सारी एट द सेम टाइम डेवलप होंगी. सो इट सेव्स टाइम वहाँ से, जहाँ पे यू हैव टू डील विद मल्टीपल प्रोटोटाइप्स. देन कॉम्प्लेक्सिटी की बात है कि बिकॉज ऑफ दीज न्यू टूल्स, बिकॉज ऑफ मोर कंप्यूटिंग पावर, यू कैन पुश इट फर्दर. लाइक अर्बन स्केल पे भी आप जा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट डिटेल में आप काम कर सकते हो. इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऑनलाइन, जिन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा इसको पुश किया है कि इस तरह की फॉर्म्स उन्होंने जनरेट की, इस तरह के स्ट्रक्चर जो कि शायद कभी पहले पॉसिबल थे ही नहीं. सो दैट्स वन एडवांटेज. एंड देन द थर्ड इज के बिकॉज वी लिव इन दिस एज ऑफ डेटा एंड एल्गोरिथम, सो आप वो रियल टाइम में आप वो चीज़ें प्लग इन कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल आपका वेदर स्टेशन है, वहाँ से डायरेक्ट आप डेटा ले सकते हो क्लाइमेट का, एंड देन यू कैन सी कि वो आपकी बिल्डिंग को किस तरह अफेक्ट कर रहा है. मे बी आप कोई सेंसर्स आप यूज़ कर सकते हो, कोई इंटरेक्टिव सेंसर्स आप यूज़ कर सकते हो कि वो रियल टाइम के अंदर वो चेंज हो रहा हो. सो अब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं. देयर आर इवन फ्यू आर्टिस्ट जो कि इवन सेल फोन्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सेंसर्स होते हैं. सो पीपल कैन इंटरेक्ट विद द फॉर्म, विद द स्पेस, और वो उस तरह से रियल टाइम में चेंज होता है. सो वो जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है वो भी इन पैरामीट्रिक टूल्स के अंदर पॉसिबल है. But then that means कि we have to really change the way we think about design. क्योंकि पहले तो हम subconsciously तो हम as architects हम कर ही रहे हैं, but अगर हम बात करते हैं कि specifically हमने design process को इस तरह लेके चलना है, so that means कि we have to change the way we think. दो terms जो कि बहुत common use होती हैं, जो आपका जो traditional या conventional design method है, that's called a top-down approach. You get a site, you get a problem, आप पहले उसकी मैसिंग करते हो, सॉर्ट ऑफ एक अप्रॉक्सीमेशन मॉडल आप उसका करते हो, देन स्लोली आप डिटेल पे आते हो. सो दैट्स लाइक अ टॉप डाउन अप्रोच.
जो कंप्यूटेशन है वो डिमांड करती है कि यू स्टार्ट बॉटम अप. सो आप पहले सबसे पहले अपने डिफाइन करो फंक्शंस, वेरिएबल्स, एंड देन वहां से देखो कि आपकी बिल्डिंग क्या निकलती है. सो इन अ लॉट ऑफ वेज जो कंप्यूटेशनल डिजाइन है उसमें यू नॉट रियली डिजाइनिंग द फाइनल प्रोडक्ट, you're actually designing the system that defines the building. Again, it's still like zaruri nahi hai. A lot of architects have used the tools differently. They still make aesthetic changes. और कुछ लोग जो वो argue करते हैं कि नहीं, we have to be strict in terms of parameters और हमें उसको process को नहीं छेड़ना चाहिए. So basically design process already जो होता है वो एक algorithm की तरह होता है. So algorithm basically means a set of instructions. So उस पर मैं बाद में भी थोड़ा सा explain करूँगा. So अगर हमने computational thinking अगर हमने अपनी strong करनी है, so that means कि we have to be more specific कि हम design process अपना किस तरह बना रहे हैं. And in the end, so you're not technically designing a building, you're actually making tools, right? So for example, जैसे आपकी pavilion की जो exercise होगी जो कि आप by the end of workshop करोगे, you won't be actually designing one pavilion. हाँ, आप show एक कर रहे होगे, but by the end of the workshop you'll have a script, एक algorithm जिससे आप जितने मर्जी different pavilion की आप variations निकालो simply by changing the variables. So architects of tomorrow would be actually tool makers. So pavilion का एक script हो सकता है, there could be a separate script, let's say a hospital, and then वो script के सिर्फ कुछ basic variables change करके you can come up with a different hospital. So वो हमें अपना way of thinking थोड़ा सा जरा हमें बिल्कुल basic groundwork पे लाना, बहुत चीज़ों complex ideas को बहुत basic level पे हमें break down करना पड़ेगा. So just two examples, मैं बहुत ज़्यादा examples में नहीं जाना चाह रहा because not until unless we actually know कि वो process क्या है तो building को उस तरह से देखने का फ़ायदा नहीं है. ये इसलिए नोटेबल एग्जाम्पल है, दिस इज द कॉन्सर्ट हॉल बाय फ्रैंक गैरी, बिकॉज गैरी ने एक्चुअली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी डेवलपिंग देयर ओन पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर. उन्होंने एक्चुअली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर लेके गैरी टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप की थी, एंड दे बेसिकली केम अप विद दिस सॉफ्टवेयर. और इस बिल्डिंग का जो सारा एनवेलप है वो इस तरह डिज़ाइन है कि हाउ कैन यू बेंड मेटल विदाउट एक्चुअली क्रिएटिंग अ फोल्ड उसके. So कितना आप seamless तरीके से आप bend कर सकते हो without actually damaging the material. So that was their process. Then उसके बाद ज़हादीन and partners, क्योंकि ज़हादीन तो नहीं रही अब, but पैट्रिक शूमाकर उसको lead कर रहा है. So उन्होंने टर्की के लिए उन्होंने एक urban master plan उन्होंने prepare किया था जिसमें what they did was they actually started with simply the road networks, streets और road networks की basis पे उन्होंने पूरा का पूरा master plan जो था वो generate किया था. Again, Patrick Schumacher, Frank Gehry, they're like different, I would say, sides of the debate. ठीक है, because like I said, ये terms बहुत ज़्यादा आपको नजर आएंगी. You'll see computational design, you'll see parametric design, associative design, algorithmic design, and then there's parametricism जो कि थोड़ी सी recent term है. So like very briefly, parametric design जिस तरह के अगर आप नीलीच की अगर आप writing को follow करते हो तो वो तो कहता है कि डिज़ाइन एसेंशियली है ही पैरामीट्रिक. सो ग्रास हॉपर को पैरामीट्रिक कहने का कोई फ़ायदा नहीं है. जो एक बंदा ऑटोकैड पे काम कर रहा है वो भी पैरामीटर्स के साथ काम कर रहा है, राइट? सो पैरामीट्रिक डिज़ाइन जो है उसके मुताबिक ही सॉर्ट ऑफ अ लीड क्रिटिक ऑन पैरामीट्रिसिज्म, सॉरी कंप्यूटेशनल. तो according to him that's what parametric means. Then there's associative design. Associative design again means almost the same thing, but इसके अंदर then you talk about systems, that one system if changed affects another system. In an example of a building वो ये हो सकता है कि let's suppose आपका जो building की openings हैं या जो facade है that would depend upon कि interior spaces कौन सी हैं, corridors कहाँ पे हैं. So अगर आप interior planning अगर आप अपनी change करोगे so naturally उसकी वजह से आपकी building के outside skin में भी changes आने शुरू हो जाएंगे. So that's called associative design. So one system जो कि completely independent है might have a change on another system जो कि completely different है. Algorithmic design, जो ये workshop है, this is mostly about algorithmic design because we would be designing a process through code essentially.
सो एल्गोरिथमिक डिज़ाइन है वो नील लीच और पैट्रिक शुमाकर और सारे जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि हाँ जो ग्रास हॉपर, राइनो, बिम, ये जो सारे की, हाँ बिम अगेन इज अ पैरामीट्रिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, रेविट, क्योंकि यू अगेन डिज़ाइनिंग विद सिस्टम्स. सो एल्गोरिथमिक डिज़ाइन का बेसिक premise ये है कि architects now in this day and age need to be coders. ग्रासहॉपर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्यों हैं वो उस पर भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ग्रासहॉपर क्यों है, उसका पर्पस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं. सो एल्गोरिथमिक डिज़ाइन में जिस तरह MIT लेके चल रहा है, सो बेसिकली आर्किटेक्ट्स अब प्योरली कोड में काम कर रहे हैं. वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, वो किसी भी विजुअल इंटरफेस में नहीं काम कर रहे हैं, और पूरे के पूरे सिस्टम्स जो हैं दे आर डीलिंग विद नंबर्स, वेरिएबल्स, डेटा इन मैथमेटिकल फंक्शंस. इसमें बहुत सारा काम जो है जिनसे नाम निकल गया, खैर बाद में नाम आएगा. तो सो एल्गोरिथमिक डिज़ाइन वहाँ पे है, और ग्रासहॉपर जो है वो काइंड ऑफ एल्गोरिथमिक डिज़ाइन पे आ जाता है. एंड देयर्स पैरामीट्रिसिज्म. ये एक बहुत आप कह लें कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो कि ज़ाहा हदीद के टाइम से जो है वो शुरू हुई थी. अब यू नो कि व्हेन यू सी ए बिल्डिंग यू कैन क्लियरली रिकग्नाइज कि ये ज़ाहा हदीद की बिल्डिंग है, राइट. इट हैज़ अ सॉर्ट ऑफ दिस एस्थेटिक फ्लो है, कर्व्स हैं, कर्विलिनियर सर्फेसेस हैं. सो वो पैट्रिक शूमाकर ने इन अ वे ज़ाहा हदीद के पासिंग अवे के बाद सॉर्ट ऑफ उसको हाईजैक कर लिया हुआ. अगेन दैट्स अ कंट्रोवर्सी जो है, इस पर काफ़ी डिबेट हुई हुई है. आई वॉज लकी इनफ टू बी देयर इन अ डिबेट, तो वो तो खैर उसका थोड़ा सा एरोगेंस भी आ जाता है बीच में. सो पैरामीट्रिसिज्म अकॉर्डिंग टू पैट्रिक शूमाकर इज एन एस्थेटिक मूवमेंट. इट डजंट नेसेसरीली मीन कि आप एल्गोरिदम्स के साथ काम कर रहे हो. इट सिंपली मीन्स के आपकी फॉर्म इस तरह बन रही है कि इट रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ एल्गोरिदम्स एंड डेटा. सो दैट्स व्हाई यू हैव ज़ाहा हदीद की फॉर्म्स. अब मोस्टली जो ज़ाहा हदीद का जो काम था वो नेसेसरीली एल्गोरिदमिक ड्रिवन नहीं था, वो उसकी अपनी एस्थेटिक लैंग्वेज चल रही थी, स्पेशली जो उसका अर्ली काम है. सो पैट्रिक शूमाकर कहता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद the only aesthetic you have now is parametricism. The building has to look like it was made by this combination of man and machine. वहाँ पे नील लीच जो है वो उसके टोटली अगेंस्ट है. वो कहता है कि पैरामीट्रिसिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फैशन ट्रेंड है, एंड just because you're dealing with algorithm does not mean that you have to create these curvilinear geometries और ये सारा का सारा. You can have this very building, इसकी बड़ी rigid planning है. You can still design it through an algorithm. You can still have a function of, let's say, windows, doors, corridors. Like कहीं पे भी given नहीं है. So ये parametricism की जो है वो debate यहाँ पे. So just ये terms, just for your understanding, क्योंकि ये terms बहुत ज़्यादा misuse भी हो रही हैं. But अगर आप कहीं पे further reading भी करोगे तो आपको यही terms आपको mostly मिलेंगी. So हाँ, थोड़े से misconceptions. एक है सबसे पहला कि why people hesitate in coming towards parametric. एक तो है कि coding knowledge, because coding in itself is a completely different field. Computer programming वो लोगों को intimidate करती है, especially जिनका computers का experience let's say सिर्फ और सिर्फ 3D softwares तक है, तो उनके लिए भी even मुझे भी नहीं आती coding उस तरह से, तो it can be a very challenging start. उसकी वजह से लोग discourage हो जाते हैं. वहाँ पे grasshopper जो है ना वो फंक्शन करता है, बिकॉज ग्रासहॉपर इवन दो एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है बट उसका जो इंटरफेस है वो कम्प्लीटली विजुअल है. सो ग्रासहॉपर का पर्पस है टू लेट आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स कोड विदाउट एक्चुअली लर्निंग हाउ टू कोड. आप उसके अंदर फिर भी आप C++ और पाइथन आप यूज कर सकते हो, बट इवन आई वुड से इंटरमीडिएट लेवल यू डोंट रियली नीड दैट कोडिंग नॉलेज, एटलीस्ट नाउ. वो इट्स कम्प्लीटली अप टू डिज़ाइनर्स. कुछ लोगों ने किया हुआ है, कुछ ने नहीं किया हुआ. एंड ऑफ कोर्स लर्निंग कर्व, बिकॉज उसका वे ऑफ थिंकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है. देन दिस द एस्थेटिक लिमिटेशन, बिकॉज वो पैरामीट्रिसिज्म की वजह से, ज़ाहा हदीद के काम की वजह से एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि लोग एसोसिएट करते हैं ज़ाहा हदीद की बिल्डिंग को पैरामीट्रिक से, या फ्रैंक गेरी के काम को लोग पैरामीट्रिक से. हर आर्किटेक्ट की अपनी एक एस्थेटिक चॉइस होती है, उसकी एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन होता है, और कहीं बहुत सारे आर्किटेक्ट्स जो हैं वो इस एस्थेटिक के साथ डिसएग्री करते हैं, तो इसलिए वो ऑल ऑफ अ सडन पैरामीट्रिक से जो है वो पुट ऑफ हो जाते हैं. अगेन दैट्स अ मिसकंसेप्शन एंड दैट्स जस्ट द एस्थेटिक साइड. यू डोंट रियली नीड टू अडॉप्ट दैट काइंड ऑफ एस्थेटिक इफ यू वांट टू बी एक पैरामीट्रिक डिजाइनर. पैरामीट्रिक
can help you do a lot of things much quicker and much faster without even changing the way you design. Then there's fabrication and field relevance के पाकिस्तान में स्पेशली बहुत बड़ा मसला है. बाहर तो पेरीमेट्रिक इसलिए भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है because they have easy access to CNC, they have easy access to 3D printers. हमारे यहाँ भी वो चीज़ें लिमिटेड है. हमारे यहाँ बहुत कम एलिमेंट्स होंगे किसी बिल्डिंग के जो कि CNC में जाएंगे, कोई कस्टम फैब्रिकेटेड पीसेज होंगे. लाइक वो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स हम कभी भी हम कस्टम नहीं बना रहे होते. या वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी राइट नाउ. सो उसकी वजह से भी जो लोग हैं वो अवॉइड करते हैं कंप्यूटेशन को. बट द मोर यू स्टार्ट यूजिंग ग्रासहॉपर एंड द मोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, so you don't really need to stick to this tool उस तरह से. You can still have your entire workflow in a traditional office, but वहाँ पे perimetric जो हो सकता है वो मे बी एक फेज आपका easy कर रहा हो. Let's suppose वो आपका डिज़ाइन फेज जो है वो उसको सिंप्लीफाई कर रहा हो, उसको ज़्यादा एफिशिएंट कर रहा हो, एंड देन उसके बाद आप किसी और टूल पे आप शिफ्ट कर सकते हो. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो नील लीच ने बहुत ज़्यादा बात की हुई है कि राइट नाउ आर्किटेक्ट्स के पास कभी इतनी फ्रीडम नहीं थी हिस्ट्री में कि यू कैन हैव 10 डिफरेंट टूल्स इन एन ऑफिस. ठीक है, आप रेविट को ग्रासहॉपर के साथ प्लग इन कर सकते हो, आप ऑटोकैड को बीच में ला सकते हो, आप इवन स्केचिंग को बीच में वो इंजेक्ट कर सकते हो. उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. सो लाइक मैं भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था. इट वाज अ ब्रिक फसाड, इवन दो मेरे पास कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, बट Grasshopper was simply helping me deciding कि brick का pattern क्या होगा. So even with limited technology, it can still help. तो वो भी again, this is something जो कि एक image बनी हुई है perimetric की computation की. And then there's Rhino 3D. क्योंकि Grasshopper का name सबसे ज़्यादा common है. वो इसलिए क्योंकि बस ये एक popular software बन गया. और भी algorithmic softwares हैं जो कि Grasshopper की तरह के हैं. Grasshopper popular हो गया, उसके online forums बहुत ज़्यादा active हो गए. बट ये कि क्योंकि ग्रासहॉपर राइनो के अंदर फंक्शन करता है, सो पीपल बिलीव के अगर आपको राइनो नहीं आता तो आप ग्रासहॉपर नहीं कर सकते. अगेन दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. इवन इस वर्कशॉप में मैं पहले से लोगों को बता रहा था कि यू डोंट रियली नीड राइनो इसके लिए. ग्रासहॉपर नीड्स राइनो टू फंक्शन, बट जहाँ जहाँ भी कोई बेसिक फंक्शंस होंगे हम उनको कवर कर लेंगे, तो वो एज सच कोई इशू नहीं है. ग्रासहॉपर का जो मेन पर्पस है आर्किटेक्ट्स के लिए वो ये है कि जस्ट टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग, सो दैट उसके बाद अगर वो कोडिंग वाली साइड पे जाना चाहते हैं या वो रेविट पे जाना चाहते हैं, दे कैन स्टिल डू दैट, या वो ग्रासहॉपर को मजीद जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं. सो अब वापस थोड़ा सा एल्गोरिदम्स पे आ जाते हैं कि जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो पैरामीटर से फॉर्म हो सकती है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है. सॉरी बहुत ब्राइट हो गया. सो जस्ट अब आप लोग खुद ही बताओ कि सर्कल के वेरिएबल क्या क्या होते हैं. लाइक व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन अ सर्कल. रेडियस हो गया, ठीक है, पाई हो गया. पाई वुड बी अ कांस्टेंट क्योंकि वो हम वैल्यू यूजुअली चेंज नहीं करते, बट दैट्स स्टिल पार्ट ऑफ द फंक्शन. सो रेडियस हो गया, उसके अलावा एनीथिंग एल्स. सर्कमफ्रेंस हो सकता है, रेडियस हो सकता है, डायमीटर हो सकता है. उसके बाद व्हाट अबाउट के वेयर टू प्लेस द सर्कल. अ सर्कल हैज टू एग्जिस्ट समवेयर. उसका सेंटर होगा, उसका एक्स और वाई कोई वैल्यू होगी, राइट, उसका सेंटर होगा. सो यू कैन यूज इवन आप एक्स वाई और आप एक रेडियस से आप जो है वो सर्कल की आप प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हो कि उसका एक रेडियस होगा और जो कि बाउंड्री का डिस्टेंस है, और एक एक्स और वाई होगा जो कि उसका कोऑर्डिनेट होगा. तो आप सर्कल जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो. लाइक इन योर माइंड यू कैन डिज़ाइन दिस एल्गोरिदम, एक विजुअल एल्गोरिदम कि अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो सर्कल में चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी. सिमिलरली अगर एक स्क्वायर है ऑफ कोर्स देन दैट मीन्स के हमारे वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे. अगेन वी माइट हैव सेंटर, राइट, बट देन इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट आने शुरू हो जाएंगे. एक तो कांस्टेंट ये होगा कि इसकी 4 साइड्स होंगी, राइट, इक्वल लेंथ होगी, राइट, एंड बिकॉज इक्वल लेंथ होगी तो उनके एंगल्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे. सो कुछ चीज़ें जो कि हम चेंज कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो कि हम नहीं चेंज कर सकते. और अगर हम लेट्स सपोज अगर हम उन 4 या जो 4 साइड्स हैं या अगर हम 90 डिग्रीज को चेंज करना शुरू हो जाएंगे, इट वोंट बी अ स्क्वायर एनी मोर.
So to create any object, we need to have a very specific set of instructions. क्योंकि अगर वो instructions change हो जाएंगी, तो it would stop becoming that thing. So algorithm जो है वो basically आपके all the different functions या आपके जितने भी steps हैं जो कि define करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी process को, वो एक algorithm है. We already deal with algorithms and it makes life easier. So for example, जब आप किसी को चाय ऑफर करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ये पूछते हो कितनी चम्मच चीनी या कितना दूध. यू आर ओनली आस्किंग अबाउट द वेरिएबल्स. हर कोई आपको चाय बताता है, ये नहीं बताता कि चाय बनानी किस तरह है. हाँ, सो राइट, यू डिफाइनिंग अ वेरिएबल, क्योंकि चाय के क्या वेरिएबल्स देयर हैज टू बी. With 2 tea bags and a single teaspoon of milk and no sugar. ठीक है, बट कुछ कांस्टेंट्स होंगे. फॉर एग्जांपल पत्ती जो होगी वो भी एक कांस्टेंट. हाँ, बट इफ यू रिमूव द पत्ती देन इट्स जस्ट पानी एंड दूध और जस्ट गर्म पानी, फिर वो चाय नहीं रहेगी. बट एवरी टाइम यू एक्चुअली आस्क समवन वो टी, वो एग्जैक्टली आपको बैठ के शुरू से नहीं बताना शुरू करता कि चाय जो होती है वो पत्ती पहले गर्म करनी है. बिकॉज एक अंडरस्टूड, हाँ, बिकॉज काफी हमारी चीजें जो हैं वो अंडरस्टूड सी हैं कि चाय जो है उसके हर किसी के अपने वेरिएबल्स हैं. लाइक मेरे जो वैल्यूज हैं चाय की वो डिफरेंट हैं, फिजा की SCSO एविडेंटली एक्सप्लेन्ड उसके बहुत ही डिफरेंट हैं. सो लाइक ऑफ कोर्स यहाँ पे सबके डिफरेंट हो गए. बीच में कुछ छट्टा होगा, कहेगा नहीं मैं तो चाय पीता नहीं, मैं तो कॉफी पीता हूँ. सो वी आर ऑलरेडी वी नो कि एक प्रोसेस होता है एंड वो प्रोसेस सॉर्ट ऑफ हमारे कल्चर में भी लैंग्वेज में अंडरस्टूड होते हैं. सो इन अ वेरी बेसिक जो एनालॉजी जो मैं यूज करता हूँ, इट्स थिंक ऑफ अ रेसिपी. कि अगर आपके दिमाग में रेसिपी है देन यू कैन जस्ट कीप चेंजिंग द रेसिपी एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ मेक डिफरेंट उसके अंदर वेरिएशंस. आइदर अगर आप लिख के करो या थ्रू डायग्राम्स करो या थ्रू कोडिंग करो, यू आर एसेंशियली मेकिंग अ रेसिपी. इस वर्कशॉप में भी हम बेसिकली यही कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वी हैव ऑल दीज डिजिटल टूल्स, बट ये है कि जो कंप्यूटर्स का प्रॉब्लम है कि दे डोंट रियली थिंक द वे ह्यूमंस डू. उनको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड इनपुट्स और आउटपुट्स चाहिए होते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड फंक्शन चाहिए होते हैं. सो इन अ वे कंप्यूटर्स आर स्टूपिड. सो द थॉट एक्सपेरिमेंट के लेट्स से वी वांट टू टीच a computer या एक machine के omelette किस तरह बनाना है. So because food is something that everyone understands, so this actually helps in explaining कि हमारा क्या होगा, algorithm क्या होगा. So maybe we can just start by sort of breaking down. Like I said कि जो आपका कोई भी जो कांस्टेंट होगा, सॉरी आई मीन कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स आइटम है, कि ऑमलेट वैसे तो सोचने में बड़ा सिंपल है, बट अगर हमने एक मशीन को एक्सप्लेन करना है देन वी रियली नीड टू डम इट डाउन. सो मे बी वी कैन स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स. सो ओके, ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा. एग्स का क्या सब्स्टिट्यूट है ऑमलेट में? डू दे इवन हैव ऑमलेट्स? We can actually make that part of the algorithm for the omelette. ठीक है, so हम वो कर सकते हैं, but let's start with eggs. Sorry, मैं इसमें writing बहुत बुरी है. Oh wow. ये actually इधर ना बहुत छोटी स्क्रीन पे आ रहा है. हाँ, presenter भी है. Usually मैं ये white board पे करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा अजीबो-गरीब है. ज़्यादा हाईटेक हो गया. या ओके, या सो वी हैव एग्स. उसके अलावा क्या है हमारे पास? ओके, वी हैव सॉल्ट. ठीक है, वी हैव ऑयल. व्हाट एल्स? थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा. अगेन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. वो भी अब हम एक्सप्लेन करना पड़ेगा.
ठीक है, पेन कुड बी सिंपली अ टूल, उसको हम बाद में ऐड कर सकते हैं. सो लाइक No, but और क्या if चाहिए you're talking ingredient? about baked or fried, it's either going to go in a pan or a tray, Hmm. or either on a stove or in a चलो लेट्स फॉर अ सिंपलर हाँ हाँ, बट राइट नाउ हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑमलेट की बात कर रहे हैं. सो और क्या हो सकता है? onions, spice, अगेन वो फिर ऑमलेट नहीं रहेगा हाँ. सो स्पेसिफिकली अगर ऑमलेट, cheese. ओके. अब चीज जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि when you kind of add cheese to an omelette, it stops becoming an omelette and it turns into a cheese omelette. Right? ऐसे ही है ना. Okay. सो हम इसके आगे कंडीशन डाल देते हैं, वो हम बाद में हम डाल देंगे. सो और क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए? वी हैव एग, सॉल्ट, ऑयल, चीज. अच्छा, एक और चीज जो है, हाँ, ऑलिव्स हो गए. ओके. Olives, sausages, onions, tomatoes. टोमेटोज हो गए, तरह तरह के हो गए. हाँ ठीक है, धनिया भी हो गया. अच्छा, अब ऑफ कोर्स अब इनकी कोई ना कोई प्रोपोर्शन भी हो गई, राइट? मे बी एग्स की एक वैल्यू होगी, ई होगी, राइट? 1 egg, 2 eggs, 3 eggs. सॉल्ट जो होगा वो मे बी हस्बे जायका होगा. ऑयल जो होगा वो मे बी वो भी एक छोटी सी क्वांटिटी होगी, कोई डेसिमल के अंदर. अच्छा, अब चीज़ जो है मे बी सबसे पहले वी नीड टू ask ourselves a question on the machine के are we going to make a cheese omelette? So maybe हम आगे question डाल सकते हैं. Of horrible. Is it going to be a cheese omelette? You just put in a question. हाँ, but अगर मशीन है तो फिर बहुत ही डन होगा. अब of course इसके yeah, I spelled it wrong. अब जो चीज ऑमलेट है, अब इसके इस क्वेश्चन के दो ही आउटकम्स होंगे, आइदर इट्स गोइंग टू बी ट्रू और फॉल्स. अगर वो ट्रू होगा तो हमारा सारा के सारा जो प्रोसेस होगा माइट बी बिट डिफरेंट. ठीक है. सो व्हाट वी हैव आवर इंग्रेडिएंट्स, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट मेकिंग दैट ऑमलेट? लाइक पहला स्टेप क्या होता है? Quantity, defining. अंडे तोड़ना. ठीक है. But should we be defining the quantities first? क्वांटिटीज तो यहाँ पे वेरिएबल आ गए ना. ब्रेकिंग द एग्स. Okay. ठीक है. Beating it, ठीक है, बीटिंग हो गई एंड देन adding the salt. ओके. अब बीट करने के बाद अगर हम सॉल्ट डाल रहे हैं, सो हम इसका जो है सॉर्ट ऑफ यहाँ पे ले आते हैं, ऐड सॉल्ट, और हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि ये बीटिंग के टाइम पे होगा, उससे पहले नहीं होगा. ठीक हो गया. अंडे तोड़ने के बाद नमक. हाँ, breaking point पे भी डाल सकते हैं. हाँ, वो while beating, before, after beating doesn't really matter कि like वो beating के process. Why connecting a process with a correct process? Like चलो it's हम between यहाँ पे beating ले आते and हैं, breaking. हम यहाँ पे ले आते हैं. और कोई अगर हमने चीज़ें यहाँ पे डालनी है. ओके, व्हाट एल्स? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Now you ask the question if you want it to be. So let's assume कि हम ये सारा कुछ डाल रहे हैं, olives, tomatoes, except cheese, हम बाकी सब कुछ डाल रहे हैं. जो चीज़ है वो sort of एक condition है, बाकी हम सारा कुछ डाल रहे So you heat up the oil. हैं. ओके, ठीक है. ऑयल को जो है हम हीट अप कर रहे हैं. ठीक है. ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक कंडीशन होगी. अब हम उसको इंडेफिनेटली नहीं हीट करेंगे, हम उसको टिल लाइक स्मोक पॉइंट्स हम उसको पहले हम हीट करेंगे, या एक टाइम ड्यूरेशन तक हम हीट करेंगे. वहाँ पे टाइम की एक वैल्यू होगी, तब तक हम उसको हीट करेंगे. जब वो हीट हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे. सो ऑयल भी हीट हो गया पैन में, अंडे बीट हो गए, उसके अंदर हमने नमक भी डाल दिया. व्हाट्स नेक्स्ट? You pour the eggs into the pan. ठीक है. यहाँ पे जो सॉल्ट ऐड करने के बाद, बीट करने के बाद हमने पोर कर दिया. अच्छा, हमारे टोमेटोज, ऑलिव्स और वो कहाँ पे आएंगे? वो सॉल्ट के बाद आएंगे. सॉल्ट पे आएंगे ना, बट टोमेटोज को हमें पहले डाइस करना पड़ेगा, राइट? डाइस करने के बाद हम यहाँ पे सॉल्ट के साथ ही हम ऐड कर देंगे.
हम हो सकते हैं स्पेसिफिक बट इट्स हाइपोथेटिकल उसमें ये तो होगा कि एलर्जिक हो या नहीं है। I told you वो भी first कंडीशन हो time सकती है ओके ऑलिव्स को भी हम इसी तरह ले आते हैं हम टोमेटोज के साथ ही हम ऐड कर देते हैं ठीक है ताकि ऑलिव्स टोमेटोज इकट्ठे जो हैं सॉल्ट के साथ बीट करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं सो बेसिकली हमारे सॉर्ट ऑफ एक फ्लो चार्ट बनना शुरू हो रहा है सो ओके हमने ये सारी चीज़ें पोर कर दी हैं कोरिएंडर कहाँ पे जाना चाहिए ये भी टोमेटोज के साथ ही चला जाएगा ये भी साथ ही चला जाता है अच्छा इस पे काफ़ी शेफ्स आर्ग्यू भी करेंगे बट चलो हम पहले कर लेते हैं क्या कि बिल्कुल एंड पे आप यूजुअली डालते हो ना कोरिएंडर जो होता है वो को के उसकी स्मेल और टेस्ट सारा तबाह हो जाता है खैर And that's our next workshop. हाँ मैं खाने का एग्जांपल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ सो बिकॉज एल्गोरिथम्स इन रेसिपी दे काइंड ऑफ फंक्शन इन द सेम वे ओके हमने पोर कर लिया है ऑफ कोर्स पोर करने के बाद हम उसको थोड़ा सा मज़ीद हीट अप करेंगे राइट एंड देन फ्लिप अब चीज़ जो होता है वो यहाँ पे क्रूशल होता है कि आइदर यू ऐड चीज़ बाय फोल्डिंग और यू स्प्रिंकल ऑन टॉप Just flip and pour it on top. Make it a ठीक है हम उसको थोड़ा और हीट करते हैं एक और टाइम का एक हम उसको फैक्टर दे देते हैं कि जब तक वो टाइम की कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक वो जो है हमने उसको फोल्ड नहीं करना या फ्लिप नहीं करना राइट जब वो टाइम पूरा हो जाता है यहाँ पे अब जो है चीज़ का क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रू या फॉल्स राइट सो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम कह देते हैं ट्रू आई डोंट थिंक द हाँ अमेरिकन चीज कर लेते हैं इट्स नॉट रियली अ वेरी गुड ऑमलेट वैसे भी हाँ ठीक है तो हाँ सो इफ इट्स ट्रू हम तब ही हम चीज जो होगा हम उसको ऐड करेंगे वरना अगर फॉल्स होगा तो हम उसके बाद बेसिकली फ्लो चार्ट जो है वो हम चेंज कर देंगे एक्चुअली यहाँ से इसके बाद वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्लो जो है वो मेंटेन होना चाहिए बिकॉज हम बीट करते हुए आए हैं हमने हीट अप किया हमने सारा कुछ पोर किया और हीट अप करने के बाद क्वेश्चन आता है कि आर वी एडिंग चीज इफ दैट इज ट्रू देन वी ऐड चीज एंड देन वी फोल्ड बट इफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स सो हम ये वाला स्टेप हम स्किप कर देते हैं एंड यहाँ से हम डायरेक्ट हम फोल्ड पे हम फ्लिप पे आ जाते हैं ठीक हो गया सो हमने ऑल ऑफ अ सडन हमने इसके अंदर एक कंडीशन डाल दी है कुछ हमने वेरिएबल्स डाल दिए हैं बीच में हमारे हीटिंग के फोल्डिंग के हमारे कुछ फंक्शंस हैं अब फोल्ड करने के बाद ऑफ कोर्स थोड़ा सा हम उसको और हीट अप करेंगे एंड देन उसके बाद बेसिकली हम हीट ऑफ कर देंगे आफ्टर सर्टेन टाइम या हम उसको सर्व कर देंगे ईट It's very important. वेरी इंपॉर्टेंट यूज उसके बगैर फायदा नहीं ऑमलेट बनाने का हाँ तो विजुअली वी हैव स्टार्टेड हाँ there's चाय अभी आफ्टर दिस हम लेट्स हैव चाय छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं सो बेसिकली हमने सॉर्ट ऑफ एक विजुअल डायग्राम बनाई सॉर्ट ऑफ दिस फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन टू मशीन के ऑमलेट क्या है अब लेट्स सपोज हमारे जो instead of one person it's all of a sudden 4 right so हमने क्या करना होगा हमने सिर्फ और सिर्फ हमने शुरू में बिल्कुल हमने एक मल्टीप्लिकेशन हमने ऐड करनी है अगर मशीन ही कर दी है तो एग ब्रेक किया है लेकिन मशीन तो शेल के साथ डाल दी हाँ तो यहाँ पे हमें ऑफ कोर्स पे डिफाइन करना पड़ेगा रिमूव शेल हमें यहाँ पे ट्रायल वाली सब सोच है ना मशीन में सिंपलीफाई करना तो हाँ विदाउट द शेल सो खैर अगर हम इस तरह सिंप्लीफाई करने बैठे ना फिर तो हम करते रहेंगे एंड पे हम एक C++ में प्रोग्राम बना रहे होंगे और कुछ नहीं होगा ना बट इस तरह का विजुअल एग्जांपल यू कैन नाउ विजुअलाइज अ रेसिपी यू कैन विजुअलाइज अ प्रोसेस यू कैन सी द स्टेप्स यू हैव योर इंग्रेडिएंट्स यू कैन ऐड और रिमूव इंग्रेडिएंट्स और बेसिकली क्या होगा ओवरऑल प्रोसेस ये रहेगा बट जो एंड पे जो ऑमलेट होगा वो चेंज होना शुरू हो जाएगा I expect you to send me recipes like this from now.
I expect you to send me recipes like this from now. हाँ बेसिकली अच्छा अब ये जो है ऑमलेट जो चीज ऑमलेट वाला क्वेश्चन है दैट्स यूजुअली कॉल्ड प्रोग्रामिंग में अ बूलियन कंडीशन और ये भी हम आगे जाके हम यूज करेंगे अपने डिजाइन प्रोसेस में सो नाउ जस्ट इमेजिन कि यू कैन टेक एनीथिंग ठीक है लेट्स एग्जांपल आप एक बिल्डिंग है एंड मे बी यू कैन स्टार्ट जस्ट सिंपली इमेजिनिंग मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बैठ के करना है बट यू कैन इमेजिन कि एक जो बिल्डिंग का डिजाइन प्रोसेस होता है उसमें भी आप सॉर्ट ऑफ एक ब्रेक डाउन कर सकते हो स्टेप्स का या चलें अगर बिल्डिंग इज टू कॉम्प्लेक्स सो लेट्स टेक अ विंडो और अ डोर कोई भी एक एलिमेंट हम ले लेते हैं और चेयर परहैप्स कि चेयर के लिए हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे उसमें एवरेज हाइट क्या है लंबार सपोर्ट है या नहीं मटेरियल क्या होगा एंड देन यू कैन स्टार्ट इमेजिनिंग कि उसका पूरा बिल्डिंग प्रोसेस जो होगा कि उसको बनाने का डिज़ाइन करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या होगा ठीक है खाने में तो इसलिए अंडरस्टैंड है करना बिकॉज वी ऑलरेडी फॉलो वी हैव सीन रेसिपीज और उसमें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बताते हैं बट टू मेक एनीथिंग यू कैन क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ प्रोसेस दिस सॉर्ट ऑफ विजुअल प्रोसेस ठीक है और लेफ्ट से राइट आप इसको रीड कर रहे हो और अगर हम लेट सपोज अगर हम किसी और बंदे को भी अगर हम एक ऑफ कोर्स नॉट ये डायग्राम क्योंकि बहुत रफ और हॉरिबल है बट एक सिमिलर डायग्राम आई थिंक आई हैव अ बेटर डायग्राम यहाँ कहीं पे मेरे पास पड़ा हुआ तो यू कैन इमेजिन कि अगला पर्सन जो है वो फॉरन अंडरस्टैंड कर जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस डायग्राम के अंदर ठीक है सो ये जरा एक थोड़ा सा जरा आई थिंक बेहतर एक एग्जांपल है सो ऑफ कोर्स यू हैव योर नंबर ऑफ पीपल एंड देन यू मल्टीप्लाई विद द इंग्रेडिएंट्स ठीक है और वही जो हमने जो चीज़ की बात की थी कि 2 पीपल वांट अ चीज़ ऑमलेट अगर ट्रू होगा तुम चीज़ ऐड करेंगे अब इसको क्योंकि हम ऑलरेडी ये प्रोसेस कर चुके हैं आई वोंट रियली हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम वो एरोज और वो लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए ये क्लियर होना शुरू हो जाता है कि किस तरह हमने ऑमलेट की रेसिपी को हमने स्टेप बाय स्टेप हमने ब्रेक डाउन किया हुआ ठीक है और उसके बाद उसको फोल्ड किया हुआ जो भी किया सारा कुछ किया तो व्हाई आई डू दिस एक्सरसाइज इज बिकॉज के एक तो लेट्स नॉट स्ट्रेट जंप इनटू आर्किटेक्चर क्योंकि ऑलरेडी वी आर ट्राइंग टू चेंज द वे वी थिंक अगर हम पहले से अगर हम आर्किटेक्चर की डिस्कशन बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा ठीक है वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ रेसिपीज थर्ड इज के जो फ्लो चार्ट्स का जो ड्रॉ करने का टूल है दिस इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू टीच कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के लिए ये कॉमन सिंबल्स होते हैं जिस तरह आर्किटेक्चर में ड्राफ्टिंग होती है उस तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अक्सर फ्लो चार्ट्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं और इसकी हमारी वर्कशॉप से रेलेवेंस ये है कि इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम देन it would be much easier for you to understand grasshopper because as an interface grasshopper exactly इसी तरह function करता है हम exactly इसी तरह grasshopper में हम काम करेंगे कि we'll start with our basic ingredients और हम उनको आपस में इसी तरह connect करना शुरू करेंगे और left से right जो है हम पूरा का पूरा हम एक process जो है हम बनाते रहेंगे और end पे हमारे पास एक result होगा so even जब मैं grasshopper भी जब मैं use करना शुरू करूँगा so keep this example in mind क्योंकि visually they are pretty much similar यहाँ पे ग्रासहॉपर के डिज़ाइनर्स ने उन्होंने फ्लो चार्ट के आइडिया को ही लेके उन्होंने उसका इंटरफेस बनाया था सो उसमें कोई 3D एक्सेस नहीं है उसमें कोई XYZ नहीं है उसमें सिंपल एक शीट है पेपर है इस तरह की स्पेस है जिसके अंदर आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हो सो दिस इज प्रीटी मच इट जस्ट टू स्टार्ट लर्निंग ग्रासहॉपर इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल देन यू कैन प्रीटी मच यहाँ से आप आगे जो है बिल्डअप करना शुरू कर सकते हो So that's basically sort of like the intro to computation and अगर कोई questions हैं or anything so let's have चाय शाय कभी let's take a break छोटी सी so अभी तक anything which might need more so I'm just going to start with के file setup किस तरह करते हैं because we are going to let's assume well not assume but situation यही है कि a lot of you don't actually use Rhino उस तरह से
या are not really familiar. तो basically just going to start with के how do we start up Rhino and then how do we launch Grasshopper, उसकी हम फाइल किस तरह सेटअप करते हैं, वो सारा का सारा. Yeah. So Rhino में what you want to do is कि जब इसकी splash screen आती है, so new में usually आपको ये sort of कुछ options देता है, large, small objects, feet, inches. पाकिस्तान में because we use जो feet और inches हैं और large और small का decide करने का सिर्फ ये sort of एक thumb rule होता है Rhino के लिए कि जो इन्होंने यहाँ पे भी explain किया कि अगर तो आप कोई भी object बनाना चाह रहे हो, अगर वो गाड़ी से बड़ी है तो Rhino considers that as a large object. अगर आप let's suppose कोई बहुत ज़्यादा कोई minute चीज़ अगर आपने बनानी तो small object में, but वो भी इतना important नहीं है. वो बहुत complex projects में जाके कहीं फ़र्क पड़ता है कि आपने फाइल किस तरह आपने setup की है. So we're going to just start with large object and feet inches. So ये आपका Rhino का इंटरफेस है. Usually 3D सॉफ्टवेयर्स में you have your top, front, right view और in views में आप काम कर रहे होते हो. But at least for today हम even इस इंटरफेस को भी नहीं हम देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रासहॉपर के अंदर हम काम करेंगे. और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपने एक विंडो पे आप साथ साथ आप सिर्फ देख रहे होते हो. सो ग्रासहॉपर करता क्या है? ग्रासहॉपर बेसिकली इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट राइनो. इट्स अ प्लग इन ऑफ राइनो. राइनो 6 ऑनवर्ड्स जो इन्होंने बीच में इंक्लूड कर दिया हुआ है एज अ डिफॉल्ट फंक्शन. ग्रासहॉपर क्या करता है? इट यूजेस राइनो एज अ प्रीव्यू टूल कि अगर आप कोई 3D मॉडल ग्रासहॉपर में दिखा रहे हो तो राइनो ओनली हेल्प्स यू सीइंग दैट कि ग्रासहॉपर क्या बना रहा है. कैलकुलेशन सारे ग्रासहॉपर के अंदर हो रहे होते हैं. राइनो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रियल टाइम एक आइडिया दे रहा होता है. लाइक वो इवन मॉडल जो होता है वो क्लिकेबल भी नहीं होता, नॉट अनटिल अनलेस यू कंप्लीट द प्रोसेस. तो उसके लिए यूजुअली व्हाट आई फाइंड कन्वीनियंट इज के अगर आप किसी भी व्यू पोर्ट को फॉर एग्जांपल पर्सपेक्टिव को डबल क्लिक कर दो तो मैक्सिमाइज हो जाते हैं. यू कैन जस्ट सिंपली इग्नोर द अदर व्यूज. अगर तो आपका राइनो 6 है तो उसमें आपको ग्रासहॉपर का आपको बटन जो है वो एक आखिरी टैब में मिल जाता है विच इज न्यू इन V6. ये ग्रासहॉपर का ग्रीन कलर का आइकॉन है. बट इफ यू जस्ट वांट टू स्टार्ट ग्रासहॉपर इंस्टॉलेशन के बाद वेदर इट्स राइनो 4, 5, 6 यू कैन जस्ट स्टार्ट टाइपिंग ग्रासहॉपर. और अगर आपका ग्रासहॉपर इंस्टॉल्ड है वो पहले से ही आपको सजेशन देना शुरू हो जाएगा ग्रासहॉपर की. ताहा अगर बेशक करीब आ जाओ, आई डोंट नो कि स्क्रीन कितनी क्लियर है. आ रहा है? चलो सही है. सो वी जस्ट गोइंग टू एंटर ग्रासहॉपर और उसके बाद जो है ग्रासहॉपर हमारा अब स्टार्ट हो रहा है. So this is what you usually find with grasshopper. इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ. अब ऑफ कोर्स आप लोगों के ये ग्रीन बटन्स नहीं होंगे, स्पेशली जो पहली दफ़ा ग्रासहॉपर यूज़ करें. दिस इज जस्ट शोइंग के रीसेंट फाइल्स कौन सी थी. वो जो हम फ्लोट चार्ट जो हम बना रहे थे, जो सॉर्ट ऑफ स्क्रीन थी जिसके अंदर हम वो फ्लोट चार्ट क्रिएट कर रहे थे, वो आपका ये सारा का सारा ग्रासहॉपर का कैनवस है, ये सारा इंटायर. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ 2D और 3D सरफेस. इसका कोई एक्स वाई या जी एक्सेस नहीं है. दिस इज सिंपली आप इमेजिन कर लो एक ब्लैंक कैनवस जिसके अंदर आप अपना फ्लो चार्ट बना रहे हो. और जितने भी आपके पैरामीटर्स, वेरिएबल्स स्लैश इंग्रेडिएंट्स वो सारे के सारे ऊपर होंगे और ऊपर से हम बेसिकली जस्ट ग्रैब कर करके हम इसके अंदर रख रहे होंगे. मैं ग्रासहॉपर नहीं कर रहा. उसकी स्प्लैश स्क्रीन आ रही है. सिर्फ वो स्क्रीन आ रही है, ग्रासहॉपर कर नहीं रहा. अच्छा कभी कभी इसलिए होता है. अननोन कमांड आपका इंस्टॉल नहीं हुआ होगा ग्रासहॉपर. अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है ग्रासहॉपर पर. तो आपका 6 जो है वो एक्सपायर हुआ होगा, इसलिए शायद कुछ नहीं कर रहा. आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो ये आपका कैनवस है. बाकी सबका चल गया ग्रासहॉपर. ओके. सो इस कैनवस के अंदर नेविगेट करने के लिए
हम राइट क्लिक से यू कैन जस्ट ड्रैग अराउंड इस शीट के अंदर, और इसकी ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। और जूम इन जूम आउट करने के लिए यू हैव योर माउस व्हील। अच्छा, एक चीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ज़रूर ऑप्शंस ऑन कर लें अभी से। क्रॉस ओवर में जो टॉप आपका टूल बार है वहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, तो डिस्प्ले ऑप्शंस में मेक श्योर कि आपका ड्रॉ फैंसी वायर्स ऑन है और आपका ड्रॉ फुल नेम्स भी ऑन है। तो फुल नेम्स का फ़ायदा ये है कि इट्स ईजियर टू सी कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, स्पेशली जब अगर पहली दफ़ा काम कर रहे होते हैं। यहाँ से मैं चीज़ करूँ, आपका यूजुअली आपका वैसे ग्रास ऑपर इतना होगा, ठीक है। सो ये हमारा कैनवस है, इसके अंदर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जो एक बहुत कॉमन तरीका है चीज़ों को प्लेस करने का, ढूंढने का, एक तो ये ऊपर सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज बनी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव योर पैरामीटर्स एंड देन हर टैब का एक एक सब सेक्शन है। सो हम इनको काइंड ऑफ हम बारी बारी हम कवर करेंगे। आज हम मोस्टली पैरामीटर्स और मैथ्स को हम देख रहे होंगे। सो उन्होंने सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज बनाई हुई है, फिर कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज हैं। तो आइदर आप इस तरह अपना कंपोनेंट ढूंढते हो। सो यू माइट थिंक अबाउट कि अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए, सो आप उसकी कैटेगरी में जाओगे, वहाँ पे आप ढूंढोगे। वरना इसमें आप व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट सिंपली डबल क्लिक कहीं पे भी कैनवस पे, और वहाँ पे उसकी सर्च विंडो आ जाती है। वहाँ पे यू कैन जस्ट सर्च फॉर अ कीवर्ड। आई प्रेफर सर्च, क्योंकि एक तो ये कि दिस इज़ अ डायरेक्ट वे चीज़ों को ढूंढने के लिए, फंक्शंस को ढूंढने के लिए। एंड सेकंड, कभी कभी आपको एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा होता, तो आप सॉर्ट ऑफ एक तुक्का मार रहे होते हो। आप सर्च करके अच्छा मे बी मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो वो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा। सो सर्च जो है वो उस तरह से बहुत यूजफुल रहता है। कभी कभी ये होता है यू नॉट रियली श्योर कि अगर वो कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, बट वंस यू स्टार्ट टाइपिंग यू रियलाइज कि वो वहाँ पे एक्चुअली है। अगर नहीं है देन यू सॉर्ट ऑफ हैव टू डिजाइन दैट फंक्शन योरसेल्फ। ओके, जो पैरामीटर्स हैं दे आर योर वेरी बेसिक, आप कह लो वेरी बेसिक आइटम्स, जो कि एज ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, बट यू सॉर्ट ऑफ यूज देम इंटरेक्ट करने के लिए, अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के लिए। उसमें फॉर एग्जांपल आपका जो स्पेशली जो इनपुट है, सो इनपुट जो है उसमें जो आई वुड से जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होना वाला कंपोनेंट है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द पैनल। जो ये इनपुट की कैटेगरी में देयर इज दिस येलो आइकॉन कॉल्ड द पैनल। सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन द पैनल, एक दफ़ा क्लिक करने के बाद यू गेट दिस ऑप्शन कि उसको कैनवस पे कहाँ पे प्लेस करना है, और वो वहाँ पे प्लेस हो जाता है। अब पैनल के जो है ना मल्टीपल यूजेस हैं, दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट यूज्ड पैनल। इट्स आइदर यूज्ड एज एन इनपुट या आउटपुट, या even just to take down notes. It also functions as a notepad to see values या कुछ भी करने के लिए। इसकी कोई भी हमने अगर वैल्यू चेंज करनी हो या कुछ इसके अंदर लिखना हो, तो यू जस्ट डबल क्लिक और उसके अंदर आप लिख सकते हो, एंड once you click outside वो sort of उसकी वैल्यू बन जाती है। सो इसको हम कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जस्ट एज अ टाइटल। इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज भी कर सकता हूँ। सो ये मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एज अ लेबल यूज़ कर रहा हूँ कि जब अपने एल्गोरिदम को देखूँ तो सॉर्ट ऑफ उसकी हेडिंग बनी हुई हो। और इसको हम कहीं पे भी ड्रैग ड्रॉप करके रख सकते हैं। अब जो फ्लो चार्ट जिस तरह लेफ्ट से राइट चलता है, सिर्फ वो चीज़ मैटर करती है कि आप सॉर्ट ऑफ स्टार्ट से लेके एंड तक आपका एल्गोरिदम चल रहा होता है। उसके अलावा इट डजंट रियली मैटर कि आप इसको कैनवस पे कहाँ पे रख रहे हो। बस इट्स अ वेरी गुड हैबिट कि अगर आप ऑर्गेनाइज करके चीज़ें अपनी प्लेस करना शुरू करो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका ये सारा का सारा ग्रासहॉपर का स्क्रिप्ट, कि अगर कहीं पे कोई गलती है या कोई एरर है आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ पे मसला है। अच्छा, अगर इफ़ आई जस्ट वांट टू रिपीट दिस पैनल, मैं इसको एक दफ़ा सिलेक्ट करके Control C, Control V, I can just simply copy paste it। जितनी मर्जी मैं इसकी कॉपीज बना लूँ, या कुछ हम डिलीट कर लेते हैं। एक और कॉपी करने का तरीका ड्रैग करके, बट ये कि यू फर्स्ट क्लिक ड्रैग एंड देन प्रेस ऑल्ट, उसके बाद यू कैन जस्ट मेक अ कॉपी
अगेन दिस इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये जस्ट नोटिस दिस कि इस जो पैनल आइकॉन है, इसके लेफ्ट और राइट साइड पे देयर आर दीज सेमी सर्कुलर नोड्स. ठीक है, दीज आर काइंड ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स. जिस तरह हम फ्लो चार्ट में हम इमेजिन कर रहे थे ना कि हम एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, वो कनेक्शंस यहाँ पे होंगे. Any function, any component in Grasshopper will have either both of these connections, या इनमें से एक होगा, या इनपुट का होगा या आउटपुट होगा. सो क्योंकि लेफ्ट से राइट इंग्लिश में है, सो जो लेफ्ट वाला है वो इनपुट है, जो राइट वाला है वो आउटपुट है. सो अगर मैं यहाँ पे एक और पैनल रखता हूँ, ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ, बट मैं ये करता हूँ कि मैं इस पैनल को इस पैनल से कनेक्ट कर देता हूँ. सो आई विल टेक दिस जो राइट वाला कनेक्शन है, यहाँ से मैं सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करूँगा और मैं ये सेकंड पे उसके इनपुट पे लाके छोड़ दूंगा. सो ऑल ऑफ सडन जो भी मैंने पहले पैनल में लिखा हुआ है, दूसरे में वो एग्जैक्टली उसी तरह आ रहा है. दैट मीन्स कि एक पैनल जो है वो आउटपुट दे रहा है, दूसरा पैनल जो है वो सिर्फ इनपुट रीड कर रहा है. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं कोई भी अगर चेंज करूँगा पहले पैनल में, वो ऑटोमेटिकली दूसरे में रियल टाइम में चेंज हो जाएगा. बट ऑफ कोर्स यहाँ पे पैनल जो है डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट, यहाँ पे कुछ एडेड चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको. देयर इज द जीरो शुरू में. दिस इज जस्ट लिस्टिंग डाउन द आइटम्स. हम बाद में हम इसको कवर करेंगे डिटेल में, बट राइट नाउ वी कैन जस्ट सिंपली इग्नोर द जीरो. देन देयर इज दिस डबल ब्रैकेट, उसके अंदर भी एक जीरो लिखा हुआ है. अगेन ये सिर्फ एक लिस्ट की आपके लिए कैटेगरी है, ये भी अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट किस तरह काम करते हैं. अब अगेन इनका डिस्टेंस या पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज किसी एक का इनपुट जो है दूसरे के आउटपुट से कनेक्ट हुआ हुआ है. और जितने मर्जी आप कनेक्शंस आप क्रिएट कर लो, उसकी वजह यह है कि अक्सर आप एक इनपुट से आप मल्टीपल चीज़ें आप कंट्रोल कर रहे होते हो इन डिफरेंट वे. तो वो मे बी एक आउटपुट से 3 वायर्स निकल रही होंगी या 4 निकल रही होंगी. जिस तरह एक इनपुट से 3 आउटपुट जा रहे हैं, इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं. सो लेट्स सपोज मैं इधर एक और पैनल ऐड करता हूँ. नाउ व्हाट आई वांट इज कि ये जो 3 पैनल्स बन गए हैं, अब ये तीनों एट द सेम टाइम इसके अंदर डेटा फीड कर रहा हूँ. सो मैं अगर लेट्स सपोज मैं ऊपर वाले को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसका आउटपुट अगले के इनपुट में कनेक्ट किया, तो वो तो रिपीट हो रहा है. बट जो ही मैं सेकंड वाला करने की कोशिश करता हूँ, तो पहली वायर वो डिस्कनेक्ट कर देगा. ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है. इसका फ़ायदा होता है कि आप क्विकली आप स्विच कर सकते हो. बट लेट्स सपोज अगर आपने मल्टीपल वायर्स लगानी है मैनुअली, तो आप वायर ड्रैग करते हुए आप शिफ्ट प्रेस करोगे, तो ऑल ऑफ अ सडन आपके कर्सर के साथ एक छोटा सा प्लस साइन आ जाता है, एंड देन यू कैन कनेक्ट मल्टीपल वायर्स. सो नाउ इंस्टेड ऑफ 1 आउटपुट वो 3 वैल्यूज दिखा रहा है जो आखिरी पैनल है, बिकॉज उसके पास इकट्ठे 3 इनपुट्स आ रहे हैं. सो एसेंशियली क्या हो रहा है कि एक इनपुट से आगे 3 पैनल्स में जा रहा है, और फिर वो तीनों कंबाइंड आगे एक और पैनल के अंदर डेटा दे रहे हैं. सो इसलिए एंड पे हमारे पास 3 दफ़ा डेटा रिपीट हो रहा है. अब क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिफाइंड है, तो अगर मैं कहीं शुरू में जो भी मैं लिखूंगा वो फिर आगे ट्रांसलेट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ योर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट वर्क्स. और यही आपका वायरिंग का सिस्टम है जो कि थ्रू आउट ग्रासहॉपर जो है लाइक अ फ्लो चार्ट जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है. ऑफ कोर्स इसमें हर दफ़ा हम पैनल नहीं यूज़ कर रहे होते. पैनल तब यूज़फुल होता है जिस तरह के लाइक आई सेड कि कोई टेक्स्ट, हेडिंग, नोट, या अगर आपने मैनुअली कोई अगर आपने वैल्यूज़ के अंदर फीड करनी है. इन सबको सेलेक्ट करके इनको ड्रैग कर लेते हैं. तो मैं यहाँ पे एक और पैनल डालता हूँ आगे के लिए. सो और इसके अंदर क्या तरीके हैं, क्योंकि अभी वी जस्ट नीड टू नो कि हम कोई भी वेरिएबल हम शुरू किस तरह करते हैं, बिकॉज यू कांट रियली स्टार्ट विदाउट जो हमारे इनिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं. अनदर जो कि इनपुट टाइप जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट्स कॉल्ड द नंबर स्लाइडर.
नंबर स्लाइडर जो है वो आपका इनपुट की कैटेगरी में है, या ये पैनल के ऊपर आइटम है, या आप डबल क्लिक करके सर्च करके आप स्लाइडर लिख सकते हो। तो उसके अंदर ये नंबर स्लाइडर जो है वो आ जाता है। नंबर स्लाइडर बेसिकली क्या है, इट्स जस्ट दिस, एक वैल्यू जिसको आप क्विकली आप चेंज कर सकते हो ड्रैग करके। और अभी लेट्स सपोज हम इसके आगे, अब इसमें यू कैन सी कि जो नंबर स्लाइडर है उसका कोई इनपुट वाला नोड नहीं है, उसका सिर्फ एक आउटपुट है, ठीक है। बिकॉज इसको कोई इनपुट देने का फायदा नहीं है, ये सिर्फ एक नॉब सी है जिसको हम जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। और इसको अगर मैं एक पैनल के साथ लगाता हूँ तो वो नंबर स्लाइडर ड्रैग करते हुए ही वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। बट ऑफ कोर्स यू कैन नोटिस कि जो नंबर स्लाइडर है वो एक तो 0 से शुरू हो रहा है और 1 पे एंड हो रहा है, विच माइट नॉट बी द आइडियल केस किसी भी काम करते हुए, कि ना हमें शायद इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस चाहिए हो, ना हमें सिर्फ 0 से 1 चाहिए हो, मे बी हमें नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, मे बी हमें बड़ी वैल्यूज चाहिए। सो अगर किसी भी कंपोनेंट को अगर आपने चेंज करना है तो आप उसको राइट क्लिक करके आप उसकी डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हो। एक तो ये कि आप किसी भी कंपोनेंट को आप रीनेम कर सकते हो। जो ही आप राइट क्लिक करते हो सबसे पहली चीज़ उसका नाम लिखा हुआ होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जो भी एल्गोरिथम बना रहे होंगे उसके अंदर मल्टीपल स्लाइडर्स होंगे, मल्टीपल वैल्यूज होगी। अगर उन सबका नाम नंबर स्लाइडर होगा तो हमारे लिए याद रखना मुश्किल होगा। सो यू कैन जस्ट सिंपली चेंज दैट नेम। इसी राइट क्लिक मेन्यू के अंदर यू कैन एक्चुअली गिव इट सम अदर नेम। उसको हम इनपुट ए कह देते हैं या एनीथिंग, एंड देन राइट क्लिक करके आप इसको टेम्परेरीली डिसेबल भी कर सकते हो। स्लाइडर टाइप में आप क्विकली आप चेंज कर सकते हो। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है कि यू आर वर्किंग विद डेसिमल प्लेसेस। इंटीजर्स का मतलब है कि नो डेसिमल प्लेसेस, तो जस्ट 0 and 1, एंड देन ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। बट ये कि अभी इसकी रेंज जो है वो लिमिटेड है, सो वी नीड टू चेंज दिस रेंज। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे एंड देन देयर इज दिस एडिट की ऑप्शन। Once you click on it, यहाँ पे edit के अंदर you have all the details कि इसकी minimum range क्या है, इसकी maximum range क्या है, real numbers, even numbers, odd numbers। शुरू में बहुत ज़्यादा वो हैं options हैं, but इसमें जो main जो चीज़ें हमने सिर्फ देखनी है, for example के integer numbers, integer का मतलब है कि कोई decimal place नहीं होगा। रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है कि डेसिमल प्लेस होगा, और ये उसके नीचे एक सॉर्ट ऑफ स्लाइडर दिया होगा कि कितने डेसिमल्स, या आपको नीचे कॉन्स्टेंटली एक एग्जांपल भी शो कर रहा है। ये जो ऑप्शंस की विंडो के एंड पे एक छोटा सा स्लाइडर बना हुआ है, वहां पे आपको ये एग्जांपल भी दे रहा है। सो लेट्स सपोज हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए, नो डेसिमल प्लेसेस, बट हमें मैक्सिमम जो चाहिए वैल्यू कुड बी 1000 और मिनिमम maybe could be -1000। सो अब जो है वो एक स्लाइडर बन गए। नीचे एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि वो प्लस और -1000 के बीच में एक स्लाइडर बन गया। एंड वंस वी आर हैप्पी विद आवर रेंज मिनिमम मैक्सिमम, उसको ओके पे क्लिक करेंगे और वो हमारा जो इनपुट स्लाइडर है वो डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। ऑफ कोर्स नंबर स्लाइडर का साइज भी हम ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स अगर वैल्यूज बहुत बड़ी हैं बट स्लाइडर बहुत छोटा है तो दैट मीन्स कि बहुत सेंसिटिव हो जाएगा हमारे लिए, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अगर हम उसको रीसाइज कर लें तो इट वुड बी मच ईजियर टू कंट्रोल वैल्यूज। अगर तब भी इफ़ यू जस्ट वांट वन स्पेसिफिक वैल्यू, तो किसी भी नंबर स्लाइडर पे आप वैल्यू पे डबल क्लिक करके उसको आप एक अपनी रेंज के अंदर आप एक वैल्यू दे सकते हो। ये तो था कि उसकी ऑप्शंस एडिट करना वो सारा सारा, बट देयर इज एक्चुअली अ मच क्विकर वे टू क्रिएट अ स्लाइडर, और वो है थ्रू द सर्च बॉक्स। इफ यू जस्ट डबल क्लिक सर्च बॉक्स पे, राइट, एंड अगर आप यहाँ पे विदाउट टाइपिंग एनी वर्ड, इफ यू जस्ट स्टार्ट टाइपिंग इन नंबर्स और आप एक रेंज देना शुरू कर दो, फॉर एग्जांपल 0 एंड देन लेस देन 100, ठीक है, तो यू नोटिस कि वो ऑलरेडी नंबर स्लाइडर ऊपर आपको
डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख के ना 0 से लेके 100, 0 लेस देन 100 अगर आप एंटर करोगे, वो क्विकली एक स्लाइडर आपको बना के दे देगा 0 से लेके 100। So this is a much quicker method to create. अभी नेगेटिव में भी जा सकता है, this could be -5 whatever to कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आप इवन इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। आप कह सकते हो कि जो स्लाइडर है वो शुरू होगा -10 से, बट स्लाइडर स्टार्ट होगा 2 से और जाएगा 10 तक। सो -10 लेस देन 2 लेस देन 10। सो सॉरी, लाइक आप इसको ये भी कह सकते हो कि यार जब नंबर स्लाइडर बनाओ ना तो वैल्यू ये होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमने बीच में एक थर्ड नंबर ऐड कर दिया 2। सो जो बीच वाला नंबर होगा वो स्लाइडर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। ये तब काम आता है जब आप कोई बहुत बड़ी वैल्यू, अगर आप लाइक यू नो कि आपने एक वैल्यू यूज़ करनी है बट यू स्टिल वांट अ स्लाइडर टू टेस्ट आउट डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। लेट्स सपोज किसी चीज़ की हाइट है, यू नो कि उसकी हाइट 12 होगी, बट बाद में यू वांट टू सी कि अच्छा 10 और 14 में कितना फ़र्क पड़ेगा, तो आप लिख दोगे 10 इज़ लेस देन 12 इज़ लेस देन 14। तो आपने मिनिमम मैक्सिमम भी बता दिया है और आपने अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी बता दी है। अच्छा, इसके अंदर देन यू कैन इवन सिंपली स्टेट के खाली इवन या अगर ऑड वैल्यूज़ में रहना, वो स्लाइडर टाइप में या एडिट के अंदर ऑप्शंस में जाके अगर हम इवन नंबर या ऑड नंबर रख देंगे तो बीच की वैल्यू स्किप करना शुरू कर देगा। अच्छा, जो वैल्यूज़ हैं ना, जितने भी नंबर्स हैं ग्रासहॉपर के, वो डिपेंड करते हैं कि राइनो में यूनिट कौन सा है। ग्रासहॉपर के अंदर ऐसा कोई यूनिट्स नहीं है, इट ओनली सीज नंबर्स एज डेटा। वो बाद में नंबर्स राइनो के अंदर जाएंगे, और अगर आपकी लेट्स सपोज राइनो की फाइल जो शुरू में मैंने फीट में सेट किया हुआ था, अगर तो फीट में है तो वो हर नंबर को ज्यूम करेगा फीट, अगर तो मिलीमीटर में है तो हर नंबर को ज्यूम करेगा मिलीमीटर। तो ये अक्सर ज़रूरी होता है कि मेक श्योर कि आपकी जो राइनो की फ़ाइल है वो सही यूनिट में है, ठीक है, ताकि उसके बाद जो ग्रासहॉपर की फ़ाइल है आपकी सही तरह काम करे। सो लेट्स सपोज अगर ये 12 है तो फॉर राइनो दिस वुड बी 12 फीट। वो हम उसके अंदर हमें कैलकुलेशन डाल देंगे। ओके, सो इंचेस और फीट को कन्वर्जन के लिए सिर्फ एक मल्टीप्लाई या डिवाइड ही डालना पड़ेगा, दैट्स प्रीटी मच इट। हाँ, वो तो कहीं पे भी हम डाल सकते हैं। अच्छा, और जो इनपुट टाइप्स हैं, ये इनपुट की पूरी कैटेगरी है। अच्छा, देयर नाउ देयर इज दिस बूलियन टॉगल, ये वो चीज़ वाला क्वेश्चन आ गया। ये इनपुट के अंदर, सो मैं ये सारे के सारे नहीं कवर करूंगा, मैं सिर्फ जो ज़रा कॉमन है ना वो मैं दिखाऊंगा। सो लाइक जो आपका बिल्कुल पहला टैब है उसके अंदर इनपुट के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स, स्लाइडर्स, स्विचेस, इस तरह की चीज़ें हैं। कौन सा यूज़ करना है वो डिपेंड्स कि आप करना क्या चाह रहे हो या आपको पसंद कौन सा है, क्योंकि डिजिट स्क्रॉलर स्लाइडर कोई फ़र्क नहीं है, बट वो अगेन डिपेंड्स कि आप उसको कितना यूज़र फ्रेंडली रखना चाहते हो या अपने लिए आप किस तरह काम करना चाहते हो। सो बूलियन टॉगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स में काम करता है। बूलियन वैल्यू मीन्स ट्रू या फॉल्स या फिर 1 एंड 0, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी में 0 इज ऑफ एंड 1 इज ऑन। सो 0 1 या ट्रू फॉल्स इज प्रीटी मच द सेम थिंग। बूलियन टॉगल इस तरह बस काम करता है कि यू डबल क्लिक ऑन द बटन और वो ट्रू हो जाता है, यू क्लिक इट अगेन वो फॉल्स हो जाता है। ये हम आगे जाके हम इसको बूलियन कंडीशंस को हम ज़रा डिटेल में देखेंगे कि हाउ डू वी इवन यूज़ दिस आइडिया ऑफ ट्रू या फॉल्स। सिंपल बटन है, बटन का भी यही काम है कि वो सिर्फ जब तक आप उसको क्लिक किए रखते हो ट्रू हो जाता है, वरना ऑफ हो जाता है। ये इस तरह के बटन तब काम आते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप क्विकली सिर्फ अपना एल्गोरिदम टेस्ट करना चाह रहे हो ऑन ऑफ करके। देयर इज डिजिट स्क्रॉलर। डिजिट स्क्रॉलर इज जस्ट अ टाइप ऑफ नंबर स्लाइडर जो कि ऊपर नीचे आप उसको मूव करते हो, जिस तरह गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है जो आपको बता रहा होता है कि आपने गाड़ी कितनी चला ली है। तो अगेन आप डिजिट स्क्रॉलर यूज़ करो या नंबर स्लाइडर, वो कंप्लीट एक चॉइस होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या एग्जैक्टली कर रहे हो।
मोस्टली यही हम नंबर स्लाइडर्स पैनल्स इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर होंगे. बाकी यू कैन जस्ट सी चेक देम कि कंट्रोल नॉब फॉर एग्जांपल, कंट्रोल नॉब एक एंडलेस साइकिल ऑफ वैल्यूज़ है जिसको आप स्पिन करते रहो. लेकिन इसका डेटा से कोई इतना ताल्लुक नहीं. दिस इज मोर लाइक एक कन्वीनियंस, पर्सनल प्रेफरेंस है. बिल्कुल. बटन सिर्फ क्विकली ट्रू और फॉल्स को सिलेक्ट करने के लिए. अगर आप उसको क्लिक करते हो ट्रू हो जाता है, जो ही आप उसको छोड़ते हो फॉल्स हो जाता है. या वो सिर्फ क्विक टेस्टिंग के लिए काम आता है. ओके ना, एक चीज़ है कि ये तो हो गए इनपुट टाइप्स. ना देयर इज अनदर काइंड ऑफ पैरामीटर. ये जो शुरू में ये ब्लैक कलर के आइकॉन्स हैं, दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स. जो आप सवाल पूछे ना कि हाउ डू यू स्टोर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके लिए ये यूज होते हैं. दे आर जस्ट देयर टू स्टोर अ वैल्यू. ठीक है, मे बी वो वैल्यू जो है वो आप परमानेंट स्टोर करना चाह रहे हो या किसी और सोर्स से ला रहे हो या आप उसको मैन्युअली डिफाइन कर रहे हो, वहाँ पे ये प्रिमिटिव्स काम आते हैं. अब दे कैन बी काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग क्योंकि लेट्स सपोज ये पॉइंट है. ठीक है, अब अगर मैं ये पॉइंट का प्रिमिटिव डालता हूँ ज्योमेट्री में से, इसके अंदर मेरे पास कोई टॉगल, कोई ऑप्शन नहीं है कि ये पॉइंट है क्या. बिकॉज इसका काम पॉइंट बनाना नहीं है, इसका काम सिर्फ पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करना है. सो इन अ वे दिस इज जस्ट अ कंटेनर. तो इवन जो पॉइंट बनाने के लिए जो कंपोनेंट है उसका भी नाम पॉइंट होगा, इसका भी नाम पॉइंट होगा. सिर्फ विजुअली जस्ट कीप इन माइंड कि जो ब्लैक कलर के आइकॉन्स हैं, they're primitives and they're only there to convert information. वो मैं कन्वर्जन भी दिखाता हूँ, उसका मतलब क्या कन्वर्जन का. थोड़ा सा फ्री स्पेस में आ जाते हैं. सो वी हैव अ पैनल. ठीक है, पैनल के अंदर लेट सपोज हम एक वैल्यू डाल देते हैं 2.3589. हम एक डेसिमल वैल्यू डाल देते हैं. अब इसके आगे मैं एक प्रिमिटिव डालता हूँ और प्रिमिटिव में कौन सा डालूंगा, मैं डालूंगा इंटीजर. अब वो अच्छा जिस कंपोनेंट पे आप कर्सर लाएंगे ऑफ कोर्स आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आपसे शेयर करेगा. सो कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स. सो मैं उस इंटीजर को आगे रख देता हूँ और आई जस्ट कनेक्ट इस पैनल का आउटपुट इनटू दिस इंटीजर. और ये फॉरन ग्रे हो गया. ग्रे का मतलब है कि उसके पास वैल्यू सही आ रही है, कोई मसला नहीं है. और वायर जो है ब्लैक है. अगर क्योंकि ये इंटीजर है तो इट एक्सपेक्ट्स कि इसको एक नंबर मिल रहा होगा. अगर मैं पैनल में कोई टेक्स्ट डाल दूंगा वो एकदम रेड हो जाएगा. तो जहाँ पे भी कोई कंपोनेंट रेड है उसका मतलब है कि उसको डेटा जो है वो सही नहीं मिल रहा, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा. और उसके साथ यूजुअली आपको एक छोटा सा आइकॉन मिल जाएगा जहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा. सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है डेटा कन्वर्जन फेल्ड फ्रॉम टेक्स्ट टू इंटीजर. बिकॉज वो इंटीजर का कंटेनर है, इट एक्सपेक्ट्स कि आप इसको कोई नंबर दे रहे हो. सो हम एक नंबर डाल देते हैं. बट इंटीजर में कोई डेसिमल प्लेस नहीं होती. इंटीजर इज जस्ट अ नंबर 0 1 2 3. तो अगर व्हाट वुड हैपन कि अगर हम इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो इसके आगे मैं एक पैनल लगा देता हूँ और इंटीजर को मैं आगे कनेक्ट कर देता हूँ. तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 दिखा रहा है, वो डेसिमल प्लेसेस इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो एक इंटीजर है. तो वो जो है उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है. सो इन अ वे जहाँ पे लेट सपोज आपके पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, यू वांट टू क्विकली टर्न इट इनटू बेसिक अप्रॉक्सीमेट नंबर, आप बीच में एक इंटीजर का प्रिमिटिव लगा दोगे. ठीक है, सो क्या होगा कि वो इंटीजर से वैल्यू गुजरते हुए डेसिमल गायब हो जाएंगे और खाली नंबर रह जाएगा. प्रिमिटिव्स का एक और काम होता है कि अगर आप पैनल नहीं बट आप कोई वैसे कांस्टेंट वैल्यू रखना चाहते हैं, सो वो भी आप कर सकते हैं कि यू हैव अ प्रिमिटिव. जब तक आप प्रिमिटिव में कोई वैल्यू नहीं रखोगे तब तक वो ऑरेंज रहेगा. अगर गलत वैल्यू होगी तो रेड होगा और अगर सही वैल्यू होगी तो ग्रे हो जाएगा. सो एक तो ये था कि मैंने इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करके एक वैल्यू उसको दे दी है. मैं मैनुअली भी इसको एक वैल्यू दे सकता हूँ बाय राइट क्लिकिंग दी इंटीजर. और जहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होगी
इनपुट डिफाइन करने की, वहाँ पे यू विल सी दिस सॉर्ट ऑफ दिस मेन्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट इंटीजर। सो सेट इंटीजर के अंदर मैं कोई भी नंबर जो है लिख के सेव कर सकता हूँ और वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन जाएगी। वो तब तक उसकी वैल्यू रहेगी जब तक मैं इनपुट को किसी और चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा। अब डेटा कन्वर्जन का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कोई और प्रिमिटिव ले लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं, और हम एक और प्रिमिटिव ले लेते हैं नंबर। नंबर का मतलब है कि वो डेसिमल्स भी एक्सेप्ट करेगा। और जो शुरू में हमने एक डेसिमल डाला था, यहाँ से मैं एक और आउटपुट ड्रैग करता हूँ, एक नंबर के साथ लगाता हूँ और एक टेक्स्ट के साथ, और एक को हम हर किसी को एक एक हम पैनल दे देते हैं। सो टेक्स्ट वाला भी नंबर शो कर रहा है बिकॉज नंबर इज अगेन काइंड ऑफ अ टेक्स्ट। नंबर वाला भी जो है वो एक वैल्यू दे रहा है, एंड देन उसके बाद इंटीजर जो है वो भी एक वैल्यू दे रहा है, बट वो डेसिमल्स इग्नोर कर रहा है। बट जो ही मैं इसके अंदर कोई और टेक्स्ट डालता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वाला फंक्शन करेगा, नंबर वाला भी एरर देगा, इंटीजर वाला भी देगा। बट अगर मैं लिखता हूँ ट्रू, फिर वो उसको किसी और तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है, बिकॉज ट्रू या फॉल्स इज अ बूलियन क्वांटिटी। तो बूलियन क्योंकि ट्रू मीन्स 1 एंड 0 मीन्स फॉल्स, तो इंटीजर भी उसको 1 ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसने ट्रू को एक नंबर दे दिया और नंबर वाले प्रिमिटिव ने भी उसको एक नंबर दे दिया। बट जो टेक्स्ट वाला है वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो उसको एज ट्रू ही दिखा रहा है। सो इस तरह प्रिमिटिव्स आप अक्सर यूज कर रहे होते हो कि आप नंबर को कन्वर्ट कर रहे होते हो या उसका पर्पस चेंज कर रहे होते हो, या आप सिंपली आप प्रिमिटिव वहाँ पे यूज कर रहे होते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी वायरिंग को थोड़ा सा ज़रा इजी बनाने के लिए, कि आपके पास एक वैल्यू आ रही है, उसको आप किसी और डायरेक्शन में भेजना चाहते हो, आप उधर एक प्रिमिटिव डाल दोगे टेम्परेरीली। वहाँ पे आप राइट क्लिक करके उसका मे बी नेम भी चेंज कर दोगे ताकि आपको याद रहे। सो इस तरह करके आप सॉर्ट ऑफ बेसिक से इनपुट्स और आउटपुट्स दे देते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट स्क्रिप्ट। एंड इट्स ओके अगर आप साथ साथ ये स्क्रिप्ट नहीं बना पाते, बिकॉज कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एक्सरसाइज के यू विल हैव टू सॉर्ट ऑफ रिपीट दिस ऑन योर ओन फॉर टुमारो। सो हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक से हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। जब हमें किसी भी चीज़ का इवेंट का हमें स्टार्ट या एंड टाइम हमें पता चलता है, हम कोई एक मेंटल कैलकुलेशन करते हैं और हम उसकी टाइम ड्यूरेशन ढूंढ लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि क्लास जो है वो 6 बजे से 9 बजे है, सो यू क्विकली नो कि 3 घंटे की ड्यूरेशन है। बट अगर कोई ऑड टाइम हो जाता है लाइक 1:30 बजे से 5:30, तो आप थोड़ा सा एक आध मिली सेकेंड ज़्यादा सोचोगे और आप सॉर्ट ऑफ मेंटली काउंट करोगे। अगर लेट्स सपोज 1:45 से लेके 2:30 होगा, आप 15-15 मिनट के हिसाब से देखोगे, आप सॉर्ट ऑफ एक मेंटल प्रोसेस कर रहे हो। सो हम इस तरह का एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं जो कि हमें टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करके दे, नो मैटर क्या टाइम की वैल्यूज, ठीक है। सो हम एक स्टार्ट वैल्यू ले लेंगे, हम एक एंड वैल्यू ले लेंगे और हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जो कि ये कैलकुलेशन हमारी कर देगा। सो जिस तरह हमने ऑमलेट में किया था, सो वी नीड आवर वेरिएबल। सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा? 24 hours time. स्टार्टिंग टाइम चाहिए। अब स्टार्टिंग टाइम डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? व्हाट आर द वेरी बेसिक थिंग्स जिसकी बेसिस पे हम टाइम डिफाइन करते हैं, वैल्यू? पहले लिमिटेशन देंगे ना कि 24 आवर्स के बीच में हमारी range राइट, है। सो दैट मीन्स कि आर की एक लिमिटेशन होगी, सो दैट मीन्स कि आर की एक वैल्यू होगी फ्रॉम 0 till 24, है ना। सो हमें सबसे पहले एक मे बी एक स्लाइडर चाहिए, तो हम कह देते हैं 0 से लेके 24। इसको हम कह देते हैं स्टार्टिंग आवर दे देते हैं, ठीक है। अब हमें मिनट के लिए भी ऐसा स्लाइडर चाहिए होगा, बट ऑफ कोर्स वी नीड अ डिफरेंट वैल्यूज के लिए। वी नीड 0 to 59, राइट। 0 से हम 59 ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं स्टार्टिंग मिनट्स
और हम एक और इसी तरह का बना लेते हैं 0 से लेके 59। इसको हम कह देते हैं स्टार्टिंग सेकेंड्स। सो ये हमारा पहला इनपुट बन गया है, स्टार्टिंग आवर, मिनट, सेकेंड्स। अब क्योंकि हमें एंडिंग टाइम के लिए भी हमें एग्जैक्टली यही चाहिए, इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हम इनका सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर लेते हैं। हम कह देते हैं इसको एंडिंग आवर, एंडिंग मिनट्स एंड देन एंडिंग सेकेंड्स। सो अब यहाँ पे ये बेसिकली हमारे दो इनपुट्स बन गए, राइट? 0 से लेकर 24 आवर्स तक, स्टार्टिंग मिनट, स्टार्टिंग सेकेंड्स, जो भी है हमारा, और हम कोई भी वैल्यू जो है हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज 6:22 एंड देन 32 सेकेंड्स, और एक हम ले लेते हैं 15 यानी कि 3:41, कोई भी हम अभी फिलहाल रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ से अब हमने सॉर्ट ऑफ डिफाइन करना शुरू करना है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द डिफरेंस। सो वी नीड टू फिगर आउट द नेक्स्ट स्टेप। वी हैव आवर इनपुट्स, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जस्ट इमेजिन कि आप बिल्कुल इस प्रॉब्लम को आप एक बेसिक लेवल पे आप ब्रेक डाउन करना चाह रहे हो। Anyone? Duration जो हमें चाहिए वो तो एंड पे चाहिए, बट हाउ डू वी इवन स्टार्ट कैलकुलेटिंग इनका डिफरेंस आपस में? ओके, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, बट हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? ओके, ओके, चलो सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस आ जाते हैं। जो मैथ्स का आपका टैब है उसके अंदर आपको ये सारे फंक्शंस मिलेंगे, एडिशन, डिवीजन, ये आपका सेकंड टैब है। वहाँ पे ये ऑपरेटर्स की कैटेगरी बनी हुई है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। इनको हम यूज़ करेंगे। नाउ द थिंग इज के अगर हम सिंपली माइनस कर लेते हैं, अच्छा अब क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शंस आ गए हैं तो एवरी फंक्शन नीड्स 2 वैल्यूज और मोर। सो अब जो है यू विल स्टार्ट सीइंग के इनपुट के नोड्स ज़्यादा हैं और आउटपुट का सिर्फ एक है। और हम जगह जगह ना हम एक पैनल लगा लेते हैं, ये सिर्फ वैल्यू देखने के लिए। अगर तो लेट सपोज मैं सिंपली आवर्स को एंडिंग आवर्स में से स्टार्टिंग को माइनस कर देता हूँ, a माइनस बी, तो ठीक है, 9 आवर्स दे रहा है डिफरेंस, बट व्हाट अबाउट फिर वो मिनट्स और सेकंड्स किस तरह काम करेगा? अगर हम यही चीज़ करते हैं कि हम बारी बारी एंडिंग मिनट्स को लेते हैं और स्टार्टिंग मिनट्स उसमें से हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमें पहला प्रॉब्लम नज़र आना शुरू होता है। आवर्स में तो ठीक है, मेक सेंस कि जाहिर है ऑफ कोर्स आपका जो एंडिंग आवर होगा वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, स्टार्टिंग आवर की कम होगी वैल्यू, क्योंकि वो टाइम आगे पीछे है। बट मिनट्स में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो 6 PM है, ठीक है, लेट्स सपोज 6:30 है स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम 3 PM है, तो एकदम आपके जो सब्ट्रैक्शन की वजह से माइनस में चला जाता है। सो इट्स नॉट रियली हेल्पिंग इन कैलकुलेटिंग। सो अब इसको हमने सॉल्व करना है। सो सेकंड्स का भी यही मसला है। अगर हम सेकंड्स को भी अगर हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो जस्ट थिंक अबाउट कि जब हम अगर आपको सिंपली किसी ने कहा है कि यार 6:30 से लेके 3 PM बट ये सेकंड्स के भी कैलकुलेशन करनी है, तो अपने ज़हन में किस तरह करते हैं कैलकुलेशन? या अगर वैसे ही अगर मैथमेटिकली करनी हो कागज़ पेंसिल से, डेसिमल में कन्वर्ट करके हो सकता है। चलो अभी मसला ये है कि आवर्स डिफरेंट हैं, देयर आर डिफरेंट यूनिट,
मिनट्स आर डिफरेंट, सेकंड्स आर डिफरेंट, ठीक है। अगर तो हम इनको एक ही यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट कर लें तो इट वुड बी मच इजियर टू सब्ट्रैक्ट। चलें आर्किटेक्चरल एग्जांपल ले लेते हैं ना। मैं कहता हूँ कि 3 फुट 9 इंचेस में से माइनस करना है 1 फुट 3 इंच। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि एक तो तरीका ये ना कि या तो आप मल्टीप्लाई कर दो इंचेस में, आपके पास बेसिक इंचेस आ जाते हैं, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आप वापस फीट और इंचेस में जाते हो। तो अगर हम इस तरह करें तो उसका मतलब ये है कि बेशक अगर मिनट आगे पीछे भी होंगे तो सब्ट्रैक्शन फिर भी शायद इजीली हो जाए। सो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। मेक सेंस? सो इनको फिलहाल ज़रा हम उड़ा देते हैं। सो पहले स्टार्टिंग टाइम को लेते हैं। आइदर वी कैन सिंपली कन्वर्ट देम इनटू सेकंड्स और वहाँ से हम लेके चले जाते हैं। सो लेट्स सपोज हमने सबसे पहले मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? सॉरी, मिनट्स को मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है। सो हम मैथ्स का एक ऑपरेटर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में आइदर आप b के इनपुट में या a के इनपुट में या पैनल लगा सकते हो और वहाँ पे आप 60 लिख सकते हो, या अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहो, मैं इनपुट नोड को राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे इनपुट पे, और डिस्कनेक्ट कर देता हूँ वायर। मैं यहाँ पे इवन जिस तरह इंटीजर की मैन्युअली वैल्यू सेलेक्ट की थी, मैं इवन b को भी राइट क्लिक करके सेट डेटा आइटम में 60 लिख सकता हूँ, ताकि मुझे वो ये ना हो कि मैं हर दफ़ा एक पैनल ऐड कर रहा हूँ, हर दफ़ा एक वायर लगा रहा हूँ, वो इवन विजुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली 60 लिख के सेव कर देता हूँ। और हम इवन इस a और b का भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। सो मैं इस b का नाम ही 60 कर देता हूँ, ताकि मुझे देखने से याद रहे कि यहाँ पे मैंने एक 60 की वैल्यू रखी हुई है और वो मल्टीप्लाई हो रही है। सो मिनट्स को हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये जो मिनट्स हैं ये अब सेकंड्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक हो गया। अगर ये पैनल ना भी हो, यू कैन इवन लुक एट द वैल्यू बाय सिंपली मूविंग योर कर्सर रिजल्ट पे या किसी भी आउटपुट पे, तो वहाँ पे आपको ये छोटी सी हिंट देता है कि वन लोकली डिफाइंड वैल्यू, और वो 1800। ओके, मिनट्स कन्वर्ट हो गए हैं। अब आवर्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ऑफ कोर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट नाउ क्योंकि अगर हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मिनट में होगा कन्वर्ट और फिर उसके बाद सेकंड्स में होगा। सो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि सिंपली 60 बाय 60 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो मैं इवन सर्च बार में भी लिख सकता हूँ, जिस तरह हमने नंबर स्लाइडर बनाया था ना। अगर मैं खाली लिखूँ 60, मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो स्टेरिक होता है, मल्टीप्लाई बाय 60, तो उसने वो क्विकली वैल्यू दे दी है। बट ऑफ कोर्स उसने स्लाइडर में दी है, वैसे लिख लेते हैं, मैनुअली लिख लेते हैं। पैनल 3600 विच इज 60 टाइम्स 60, और हम उसको मल्टीप्लिकेशन में डाल देते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया, वो वायर को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्रॉस ओपन में। बेशक आपने अंदर मैनुअली जो मर्जी वैल्यू रखी है, एज सुन एज यू कनेक्ट अ वायर, वो जो राइट क्लिक करके सेट डेटा होता है वो इग्नोर हो जाता है। सो अब यहाँ पे आवर्स भी सेकंड में कन्वर्ट हो गए हैं। एक चीज मुझे बताइए, हमने पैनल कनेक्ट किया 3600 का, और जिस तरह हम लोगों ने लास्ट ये जो मिनट्स के साथ किया कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने 60, हाँ वी कैन डू दैट, तो इसको हम डायरेक्ट डिफॉल्ट ही 3600 डाल देते हैं, कर सकते हैं। इसको हम राइट क्लिक कर लेते हैं, सेट डेटा आइटम 3600, वो एक लाइक एक ही बात है, डजंट रियली मैटर उस तरह से। सो हमने यहाँ पे आवर्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया है, मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट किया है, और सेकंड्स तो हमारे पास हैं ही हैं। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने एंड पे हमने दो वैल्यूज को तो हमने सब्ट्रैक्ट करना ही करना है, हम एडिशन करेंगे। सो हम जो आवर्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है वो वैल्यू प्लस जो मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास टोटल सेकंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे एडिशन,
एडिशन मैथ्स के अंदर आइदर आप यहाँ से क्लिक करके ला सकते हैं या आप डबल क्लिक करके एडिशन लिख सकते हैं, तो एडिशन आ जाएगी आपके पास। नाउ हाँ, बिकॉज हमारे पास दो इनपुट्स बने हुए हैं, बट अगर आप जूम इन करो एडिशन के कंपोनेंट पे तो वो छोटे छोटे प्लस माइनस के बटन शो कर देता है। यहाँ पे यू कैन ऐड इन मोर इनपुट्स। सो हमें 3 इनपुट्स चाहिए, सो ए बी सी। एक में हम आवर्स वाले डाल लेते हैं, एक में हम मिनट्स वाले डाल लेते हैं और एक में हम सेकंड्स डाल देते हैं। सो ये हमारे सारा का सारा जो है सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास एक वैल्यू भी आ रही है 23,400 समथिंग समथिंग। यही चीज़ हमने नीचे वाले इनपुट के साथ करनी है। सो वी डोंट रियली नीड टू रिपीट दो स्टेप्स। सो हम ये वाला पोर्शन सारा सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा गिवन है और वो कन्वर्जन जो है, और उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और हम सिंपली क्या करेंगे, हम थोड़ी सी ज़रा रीवायरिंग कर लेंगे कि वो नीचे वाले आवर्स को कनेक्ट कर देंगे और नीचे वाले मिनट्स को, और नीचे वाले सेकंड्स को भी हम एडिशन में कनेक्ट कर लेंगे। सो अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। ऊपर एक वैल्यू आ रही है 23 समथिंग समथिंग मेरे पास, और नीचे एक वैल्यू आ रही है 54। अब ऑफ कोर्स इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट वुड बी सब्ट्रैक्शन। अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो बता दें। क्लियर है अब तक? हमने टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट किया। हमने बेसिकली क्या किया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे ला। यू कैन डिस्कनेक्ट बाय बेसिकली जो भी आपका इनपुट है उसको राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट का मेन्यू आता है। बट अगर आप कोई नई वायर लगाओगे पिछली वाली ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा अगर गलत कनेक्ट हो गया। ओके, सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन का ऐड कर रहा हूँ। अब ऑफ कोर्स वी नीड टू बी श्योर कि हम एंडिंग को हम ए पे रखें और हम स्टार्टिंग को बी पे रखें, बिकॉज सब्ट्रैक्शन वर्क्स ए माइनस बी, वरना वो हमें नेगेटिव आंसर दे देगा। सो जो एंडिंग टाइम है उसको हम ए में करते हैं और जो स्टार्टिंग टाइम उसको हम बी में करते हैं। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, अब ये हमारे पास आ गई है ड्यूरेशन सेकंड्स में। अब जस्ट टू चेक कि ये काम कर रहा है, वी कैन सिंपली गो बैक, मूव एनी ऑफ द स्लाइडर्स और वो एंड पे वैल्यू कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट अब दे रहा होगा। अब थिंग इज कि हमारे पास ड्यूरेशन आ गई है बट अभी सेकंड्स में। सो नाउ वी नीड टू स्टार्ट कन्वर्टिंग दिस बैक इनटू अ सिस्टम कि जहाँ पे हम दोबारा से एंड पे हम देख सकें कि अच्छा इतने आवर्स, इतने मिनट्स और इतने सेकंड्स का डिफरेंस है, राइट? सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, राइट? सो सबसे पहले हम इसमें से आवर्स निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें जिस तरह हमने शुरू में मल्टीप्लाई किया था 3600 जो आवर्स और सेकंड, हम अब डिवाइड कर देंगे 3600 से। पी में हम वैल्यू लिख देते हैं 3600। So A divided by B, ये 8.815। ऑफ कोर्स आपकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी डिपेंडिंग आपने क्या वैल्यूज डाली हैं। अब आवर्स तो आ गए हैं बट आवर्स में हम कभी भी डेसिमल्स नहीं देखते, राइट? सो इधर हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अब हमने बेसिकली क्या करना है, इन डेसिमल्स को अलहदा करना है और हमने आवर्स को अलहदा करना है। सो 3600, हाँ, क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन तो आ गई थी ना सेकंड्स में। हाँ, एक सेकंड, बाकी सबका कर रहा है। अच्छा,
ये क्या कह रहा है, इससे इनपुट पैरामीटर सेट या इसकी वैल्यू राइट क्लिक सेट डेटा। हाँ यहाँ पे भी हमने डेटा नहीं सेट किया, वो ये सिर्फ नाम है, नाम ठीक है, ये नाम है, इसको नहीं सेट डेटा आइटम 600 एंड सेव नाम सो ठीक है। सो हमारे पास आवर्स हैं, आवर्स को लैदा करना है। एक तो तरीका ये कि वी कैन यूज राउंड ऑफ का फंक्शन। जो राउंड ऑफ का फंक्शन है ग्रासहॉपर में इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट, कि आपके पास कोई भी डेसिमल है वो आपको एब्सोल्यूट देता है। बट एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ का तो मतलब यही होगा कि वो 8.8 को 9 बना देगा, राइट? वो तो हमें नहीं करना, हमने तो बस सिंपली इस 8 को अलहदा करना है। बट एक दफ़ा देख लेते हैं कि मैथ्स में हमारे पास एब्सोल्यूट है, कंप्यूट दी एब्सोल्यूट ऑफ अ वैल्यू। ये हर कैटेगरी में अगर आप ये एडिशनल फंक्शंस देखते हैं ना तो ये ब्लैक बार पे क्लिक करके आ जाते हैं सारे, ठीक है। अब एब्सोल्यूट क्या करता है? सॉरी नहीं, ये वाला नहीं, हमें एब्सोल्यूट नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हाँ सॉरी, राउंड ही नाम है उसका, मिक्स्ड अप यहाँ पे। ये राउंड का फंक्शन है, ये सर्च करके राउंड, ये वैसे कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा, हाँ ये यूटिलिटी में है। इसलिए कभी कभी कैटेगरीज जो है ना मैं वैसे इग्नोर ही करता हूँ, जस्ट यूज द सर्च फंक्शन। इवन यू विल सॉर्ट ऑफ स्टार्ट प्रेफरिंग सर्च फंक्शन रादर देन जस्ट लुकिंग एट द कंपोनेंट्स। अच्छा, अब राउंड में है वो हमारे पास, अब इस अब 3 इनपुट्स दे रहा है। अब ये 3 इनपुट्स क्या हैं? दीज आर डिफरेंट वेज टू राउंड ऑफ अ फिगर। क्योंकि टिपिकली तो राउंड ऑफ ये होता है कि आप अगले नंबर पे चले जाते हो, अगर वो 5.5 से ज़्यादा है तो वो हम उसको यूजुअली नियरेस्ट वैल्यू कहते हैं, तो उसने 8.8 को 9 बना दिया। बट दैट्स नॉट द वैल्यू वी नीड। फ्लोर वैल्यू जो होती है वो होती है कि लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है। सो अगर 8.8 है तो राउंड ऑफ करके उसका जो फ्लोर बनता है वो सिर्फ 8 बनता है, यानी कि पिछली वैल्यू। और सीलिंग जो होता है वो अगेन अगली वैल्यू दिखाता है, बट सीलिंग और नियरेस्ट में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो डेसिमल प्लेसेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि 0.5 को कंसीडर करना या नहीं करना। एक तो ये तरीका है कि हमें क्योंकि सिर्फ 8 चाहिए तो हम फ्लोर वैल्यू ले लें, बाकी हम इग्नोर कर दें। देयर इज अ क्विकर मेथड, क्योंकि जिस तरह के मैं प्रिमिटिव्स एक्सप्लेन कर रहा था कि दे हेल्प इन कन्वर्टिंग डेटा, और जो इंटीजर का पैरामीटर है इट सिंपली इग्नोर्स द डेसिमल प्लेसेस। तो अगर हम खाली एक इंटीजर लगा लें और उसके आगे हम एक पैनल लगा दें तो हमें बस उसने राउंड ऑफ कर दिया, सो दैट मीन्स कि ये हमें ये नहीं चाहिए। गुड टू नो। सो दैट मीन्स कि ये राउंड ऑफ का फंक्शन ही हमें चाहिए होगा। सो ये हमारे पास आवर्स आ गए हैं, इसको हम राउंड क्लिक करके हम एक हेडिंग दे सकते हैं आवर्स। सो ये हमारा पहला आउटपुट आ गया, इसको हम ज़रा अलग करके रख देते हैं। अब ये जो बाकी वैल्यूज हैं, नाउ वी नीड दिस 0.815 हमें चाहिए। सो ऑफ कोर्स हम ये करेंगे कि आवर्स हमने निकाल लिए हैं, हम डिफरेंस हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बाकी की रिमेनिंग वैल्यू है। तो इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, और हम इस डिफरेंस में से जो हमने आवर्स अपने राउंड ऑफ किए हैं, मैं ये फ्लोर से ही वायर कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा एंड पे बस पैनल जो है वो इसी तरह पड़ा रहे। सो 8 अलहदा हो गया है और सब्ट्रैक्शन से ये 0.815 जो है वो अलहदा हो गया। अब ये 0.815 आवर है, हमने आवर्स तो अलहदा निकाल ली है, राइट? सो जो रिमाइंडर वैल्यू है वो हमें अब चाहिए उसको मजीद मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इवेंचुअली हमारे पास वो 8 जो भी आवर्स का नंबर है वो अलहदा हो गया है, डेसिमल प्लेसेस अलहदा हो गई हैं। नाउ वी नीड टू वर्क ऑन दीज डेसिमल प्लेसेस। अब हमने इनको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। या हाँ, सो ये दिस इज योर वैल्यू जिसको ए में रखना है,
हाँ और फ्लोर जो है उसको बी में रखना है, ए माइनस बी। ये जितने भी स्क्रिप्ट्स मैं भी बना रहा हूँ ना, ये मैं आप सबको ईमेल करता रहूँगा, सो यू कैन ओपन देम आप अगर कहीं पे मसला होता है या कुछ भी। ठीक है, ये 0.815 है। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स एंड देन फिर हम उसके बाद सेकंड्स उसमें से निकालेंगे। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60। सो हम एक मल्टीप्लिकेशन का ले आते हैं और मल्टीप्लिकेशन में हम बी या ए एक वैल्यू को हम 60 कर देते हैं और उसमें हम इस 8 डेसिमल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे पैनल लगाएं सो 48.9 अगेन वही जिस तरह आर्स था, अब हमने इसमें से 48 को लैदा करना है। सो हम अगेन वही हरकत करेंगे, हम एक राउंड ऑफ लगाएंगे, उस 48 को लैदा करेंगे और फिर रिमाइंडर को माइनस करेंगे। बेसिकली जो हमने हरकत आवर्स के साथ की थी ना, क्योंकि आवर्स हमारे पॉइंट्स में आ रहे थे, राइट? ठीक है, पहले राउंड लगाना है इसको भी। हाँ, ये अभी मिनट्स आ गए ना तुम्हारे पास, राइट? तो 22 मिनट्स तो पूरे हैं, उसको हमने लैदा करना है और वो जो है 0.18 समथिंग मिनट्स उनको हमने सेकंड्स में डालना है। तो हम पहले राउंड करेंगे ताकि हम नंबर को लैदा कर सकें और हम फ्लोर वैल्यू यूज करेंगे बिकॉज वी नीड जो कि पिछली वाली वैल्यू है कि वो आगे ना जंप करे। सो इन माई एग्जाम्पल मैंने उस 48 को लैदा कर दिया, अब इसको भी मैं एक नाम दे देता हूँ मिनट्स वाला भी हो गया। सो आवर्स हो गया, उसके पास में ही पैनल रख रहा हूँ मिनट्स का। सो ये मेरे कंप्लीट हो गए। तो अभी तक क्लियर है? अच्छा, अच्छा, राउंड ऑफ की राउंड ऑफ जो है वो या तो डबल क्लिक करके राइट, यू कैन जस्ट राइट राउंड ऑफ, ठीक है, तो ये राउंडिंग का आता है, या फिर आपको मैथ्स में यूटिलिटी में चलेगा ये रहा, ठीक है। सो ये वैल्यू होगी राउंड। अच्छा, इसमें डिस्प्ले में कर दो फुल नेम। तो अब ये राउंड ऑफ हो रहा है, आपने भी क्या किया, यहाँ पे सेकंड्स थे, ठीक है, आपने सेकंड्स को डिवाइड किया 3600, ये आवर्स आ गए। अब इसमें से जो फ्लोर वैल्यू है वो है लाइक आपकी जो पिछली वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ से ये आपके आवर्स हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको फिर हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, फिर हमने ये प्रोसेस रिपीट करना है, फिर हम उसमें से सेकंड्स निकालेंगे। चलो अगर ये कोई सर्च करना हो गूगल बॉक्स से क्या लिखते हैं? सर्च बॉक्स, ये जो भी चीज है अगर तो सर्च करना है, there are ways to giving different headings to each one. Is there a way to search it? I don't think so, उस तरह से है। क्या तो But ढूंढ is- जाए? इसलिए लेबलिंग जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। Is there a way to search the label? सर्च द लेबल्स मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली हैव द सेम लेबल्स एवरीवेयर, लेबल्स यूनिक नहीं है। बट इसमें ऑर्गेनाइज करने के और भी तरीके होते हैं। नंबर वन, देयर इज दिस, यू कैन एक्चुअली सेव योर व्यूज। लाइक अगर लेट्स सपोज ये मेरा आउटपुट की विंडो है और उसको मैं सेव करना चाहता हूँ, तो ये अगर आप ये यू लुक एट द टॉप ऑफ द कैनवस, ये कुछ बटन्स हैं आई वाले, यहाँ से यू कैन एक्चुअली सेव अ व्यू। सो वो कैनवस पे लोकेशन, ये जो आंख बनी हुई है, लेट्स सपोज कोई कैनवस का एरिया है, हाँ ये जो आंख बनी हुई है, हाँ, सो कहीं पे भी यू कैन फोकस और वो आंख से आप लाइक सेव कर सकते हो व्यू। सो यू कैन क्विकली जंप इन बिटवीन योर स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ आउटपुट, इसको सेव करता हूँ। तो अब मैं कहीं भी हूँ ना स्क्रिप्ट में या गुम गया हूँ, तो कैन जस्ट सिंपली
लोड एक अपना वो सेव हुआ हुआ व्यू और वहाँ से वो आगे चला जाएगा. देन देयर इज व्यू एंटायर डॉक्यूमेंट. देन देयर इज इवन एक राइट साइड पे ना एक छोटा सा कॉम्पस भी है, क्योंकि कभी कभी आप घूम जाते हो, आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपके कंपोनेंट्स किधर हैं, तो एक छोटा सा कॉम्पस भी आता है. बट हाँ, उस तरह से आप सर्च नहीं कर सकते अपने स्क्रिप्ट के अंदर. कोई भी व्यू है वो आप इस आइकॉन से आप सेव करते हो. या यू जस्ट प्रेस दिस बटन और वहाँ से जो है आप कर सकते हो. हाँ, आप इवन बीच में नोट्स भी अपने स्केच कर सकते हो. देयर इज अनदर, वो मैं जब स्क्रिप्ट कंप्लीट होगा ना, देन आई विल शो कि यू कैन इवन क्रिएट बिगर लेबल्स. लाइक आप ग्रुप्स बना सकते हो कि इस एल्गोरिथम में ये पार्ट ये कर रहा है, ये पार्ट ये कर रहा है. मैं यूजुअली पर्सनली काम करते हुए मैं बहुत सारे पैनल्स यूज़ करता हूँ, लाइक स्टिकी नोट पैड. बहुत सारे मैं भर देता हूँ कि यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ. जो अक्सर होता है आप अरसे बाद एक फाइल खोलते हो और आपको समझ नहीं आती. ओके, सो अब सेकंड्स रह गए हैं. सेकंड्स के साथ भी वही करना है. पहले सब्ट्रैक्शन करनी है क्योंकि मैंने मिनट्स अलहदा कर ली हैं राउंड ऑफ करके. सो डेसिमल वाली 48.9 में से मैं राउंड ऑफ वैल्यू का फ्लोर सब्ट्रैक्ट करूँगा. सो दैट शुड गिव मी 0.9 सेकेंड्स. एंड बस एंड पे आई विल मल्टीप्लाई दैट विद 60. multiply by 60, enter. This is sort of like shortcut कि वो b की वैल्यू ऑलरेडी 60 रख देगा, एक इनपुट खाली होगा और उसको हम डाल देते हैं. एंड नाउ फाइनली आई हैव माय सेकेंड्स. इसको हम क्या देते हैं, सेकेंड्स. सो नाउ अब वो ऑटोमेटिकली, और इनको तीनों को हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं ताकि ये कंफ्यूज ना करें. आवर्स, मिनट, सेकंड्स, ये सिंपली है कि कौन सी ड्यूरेशन आपने दोनों टाइम्स के बीच में कैलकुलेट किया. सो आई कैन जस्ट गो इन द बिगिनिंग और एक टेस्ट वैल्यू मैं रख सकता हूँ कि जिसका मुझे आंसर पता हो. मैं कह देता हूँ 12 बजे से लेके 3 बजे तक एग्जैक्ट. सो आई नो कि इसका आंसर क्या है. should be 3 and 0 and 0, तो बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है. तो इस तरह हम 2-4 वैल्यूज के साथ हम टेक्स्ट कर सकते हैं. उसके बाद कोई भी रैंडम वैल्यू होगी, इट सिंपली डज द कैलकुलेशन फॉर अस. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपना पहला टूल क्रिएट किया है, एक कैलकुलेटर क्रिएट किया है जो कि बेसिकली दो किसी भी टाइम्स के बीच में एक ड्यूरेशन आपको बता रहा है. अब दिस फंक्शंस लाइक दैट सेम फ्लो चार्ट जो कि हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, और अभी तक हमने राइनो को हाथ भी नहीं लगाया. वी आर सिंपली यूजिंग दीज वैल्यूज, और यही वैल्यूज कैन देन मीन डिफरेंट थिंग्स. लाइक आगे जाके हम जब इन्हीं वैल्यूज के साथ हम मजीद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम रादर देन सेइंग के आवर्स, मिनट, सेकंड्स, हम कह देंगे अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जी. तो फिर हम पॉइंट्स के साथ शुरू हो जाएंगे, फिर हम लाइंस के साथ, और ये इसी तरह बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो इसके चलते रहेंगे. यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऐड भी कर सकता हूँ. हम मे बी एक बीच में एक कंडीशन डाल सकते हैं. ये थोड़ा सा मैं जंप कर रहा हूँ, बट लेट्स सपोज हम जस्ट टू नो कि कैलकुलेटर सही काम कर रहा है, वी वुड नो कि कैलकुलेटर गलत काम कर रहा है अगर लेट्स सपोज स्टार्टिंग टाइम जो है उसका आवर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें माइनस में देगा वैल्यू. सो अगर वो माइनस में दे रहा है, सो इट शुड गिव अस सॉर्ट ऑफ लाइक अ मैसेज कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा. हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, जिस तरह वो चीज़ वाला क्वेश्चन था उसको ये ऑपरेटर में आपने सिर्फ टेस्ट करना है कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है ना कि इट्स लेस देन 0, पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0. तो हम इसको कह देते हैं कि स्मॉलर देन 0 हमने टेस्ट करना है. सो वी जस्ट वांट टू चेक इफ स्टार्टिंग आवर
is smaller than the ending hour, क्योंकि सिर्फ उसी केस में कैलकुलेटर काम करेगा, और जो उसका आउटपुट होगा that would be either true या false. What command did you use? Smaller than, ये मिलेगा मैथ्स के ऑपरेटर्स में. Okay. सो ये हम इसको एक कंडीशन दे रहे हैं और ये आउटपुट में या हमें ट्रू देगा या फॉल्स देगा. कि if the starting hour is less than the ending hour, और इस पैनल को हम नाम दे सकते हैं are the values correct. इसको हमने कौन से इनपुट्स दिए? हमने दोनों आवर्स के. हमने दोनों आवर्स के दे दिए जस्ट टू चेक के हमारी स्टार्टिंग वैल्यू ठीक है या नहीं, तो ताकि देख के पता चल जाए कि स्क्रिप्ट सही काम कर रहा है या नहीं. अगर ये फॉल्स कह रहा है उसका मतलब है कि वैल्यूज खराब हैं. जो एंडिंग आवर इट शुड बी ग्रेटर देन द स्टार्टिंग आवर, और जो ही वो हम उसको चेंज करते हैं वो कंडीशन ट्रू हो जाती है कि हाँ एंडिंग आवर इज द स्टार्टिंग आवर इज स्मॉलर देन द एंडिंग आवर. ये सिर्फ एक एडेड वो है. ये लॉजिक और कंडीशंस को जरा डिटेल में हम बाद में देखेंगे. हाँ, the values will not match ना, but actually हम 24 hour format यूज कर रहे हैं. but हाँ, you are right कि अगर let's suppose, तो हम उसका भी एक कर लेते हैं ना. हम ऐसा कर लेते हैं, क्या बताइए स्टार्टिंग वैल्यू 23, ठीक है, एंडिंग है 3 बजे समथिंग, तो एंड पे हमारे पास वो नेगेटिव दे रहा है, राइट. सो इसको हम सिंपली ये कर लेते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट का फंक्शन. एब्सोल्यूट क्या होगा, वो प्लस और माइनस को इग्नोर कर देता है. सो यहाँ पे हम मैथ्स में जाएंगे ऑपरेटर्स में एब्सोल्यूट, क्योंकि हमें तो सिर्फ डिफरेंस चाहिए ना. वी डोंट रियली केयर कि वो माइनस है प्लस है क्या है. सो ये जहाँ पे वैल्यू निकल रही थी मैं बीच में से वायर में इंसर्ट करने लगा हूँ एब्सोल्यूट. But that's a false result. That's false. AM/PM का वो मैंने उड़ा दिया ना. AM/PM फैक्टर नहीं है हमने ऐड करा. AM/PM तो 20, वो एक्चुअली उस कंडीशन में आपको जो ऐड करना पड़ेगा ना, वो फिर कंडीशंस में चला जाएगा, क्योंकि रात 3 बजे का मतलब है अगला दिन. अगले दिन का मतलब है दैट्स एक्चुअली 3 + 24. तो आप कहोगे हम उसमें लाइक डिफाइन करेंगे. मैं इसी एग्जांपल में वो डेमोन्स्ट्रेट कल कर दूंगा, कल या परसों, के इफ द एंडिंग आवर इज ग्रेटर देन द स्टार्टिंग आवर, क्योंकि वो तभी होगा ना कि रात 11 बजे से सुबह 3 बजे, देन ऐड 24. तो वो उस तरह कैलकुलेट करके हमें बता देगा. हाँ, क्योंकि you're saying अगले दिन का 3 बजे ना. हाँ, बट वो हमें वो इफ वाला हमें डिफाइन करना ही करना पड़ेगा ताकि वो कैलकुलेटर दोनों सिचुएशंस में वो काम करे. हम क्लॉक वाली कमांड नहीं यूज कर रहे. क्लॉक वाली कमांड हम इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि उसका एक तो नंबर 1 उसका एक बड़ा स्पेसिफिक फॉर्मेट है, ठीक है. उसको हम यूज तो कर सकते हैं, बट द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज के हम लॉजिक जनरेट कर रहे हैं, एंड देन यू कैन यूज दिस एग्जांपल टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ अ मैथमेटिकल टूल व्हिच इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज. Just take any everyday calculation. It doesn't need to be complex or anything. कोई भी किसी भी चीज़ का आप हिसाब किताब लगाते हो, आप कोई बजट कैलकुलेट करते हो, just try to make that in grasshopper by simply adding, subtracting and multiplying different values. Of course अपने आप को अगर challenge देना है then find a problem, जैसे I don't know पेट्रोल की माइलेज कैलकुलेट करनी कि पर लीटर मेरी गाड़ी कितना खा रही है अगर मैं रोज़ इतनी गाड़ी चला रहा हूँ और पेट्रोल का ये रेट ये. इस तरह की कोई भी आप एग्जांपल ले लें, एंड इफ़ यू कैन क्रिएट दैट इन ग्रासहॉपर तो वो बेसिकली रूल्स तो सारे ये वाले यूज होंगे. क्लॉक वाली प्रिमिटिव्स में पैरामीटर्स में इनपुट के अंदर क्लॉक है.
कंस्ट्रक्ट टाइम भी है, वो है, बट क्योंकि ये सिंपल एग्जांपल है तो इसलिए मैंने टाइम का यूज़ किया है, वरना तो कैलेंडर भी है, इस तरह की चीज़ें भी हैं. Like you can use this, but इसका मजा क्या है? Like I said, this example is not about कि time के साथ कैसे deal करना, but more like how do we use maths और वो एक basic flow chart किस तरह बनाना है. I'm just going to delete all of this. जो सिर्फ sliders थे. अच्छा, अब जो organize करने की बात कर रहे थे कि जब आपको समझ नहीं आती, क्योंकि इतना simple सा भी जो क्वेश्चन है ना वो इतना स्क्रिप्ट बन गया, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि वी कैन स्टार्ट ग्रुपिंग देम, कि हम इस पूरे को हाईलाइट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके वी कैन कलर चेंज कर सकते हैं. यहाँ से हम मे बी इसका कलर ग्रीन कर देते हैं, इन सबका ब्लू कर देते हैं, या हम ये कर सकते हैं इन सबको हाईलाइट करके अगर आप कंट्रोल जी करो तो एक ग्रुप बन जाता है. Just grab any collection of components. आप कोई भी collection बनाओ, उनको select करके अगर आप Control G करो तो एक ग्रुप बन जाता है, और आप फिर उस पूरे ग्रुप को इकट्ठे मूव कर सकते हो और उस ग्रुप को आप नाम भी दे सकते हो. So this helps in labeling the आपका कोई भी अगर स्क्रिप्ट है. So this is essentially आपका पहला parametric script. So I would really suggest कि कल हम सबसे पहले I would want to see कि if you can sort of use this logic and create something else. इसी तरह का calculator, ठीक है, just doing something else. बेशक time based now, it could be finances based, anything you can come up with. Because then you will run into problems. थोड़ा सा आप सर मारेंगे दीवार में कि उस वक्त तो मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. अब एग्जैक्टली, बट जब वो कोई 15-20 मिनट जब सर मारेंगे ना, उसके बाद वो सोल्यूशन याद रहेगा, उसके बाद फिर हर दफ़ा याद रहेगा बिफोर, एंड देन यू विल नो हाउ टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम. क्योंकि बिकॉज देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, अच्छा ग्रास हॉपर जो है ना उसको ये भी बताना पड़ेगा 2 स्टेप बाद में, तो वो अभी से कर लेते हैं. ओके, अब जो है वी जस्ट गोइंग टू सेव द फाइल. जो ग्रास हॉपर की फाइल है वो राइनो से हमेशा अलग सेव होती है. जो ग्रास हॉपर की फाइल होती है यूजुअली दे आर कॉल्ड डेफिनेशन. इसको हम करेंगे सेव डॉक्यूमेंट, और इसको हम एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ स्क्रिप्ट्स का. टाइम कैलकुलेटर. अच्छा, अब अगर आपने ग्रासहॉपर की फाइल कभी भी ओपन करनी हो, डायरेक्टली ओपन नहीं होती. उसके लिए पहले राइनो स्टार्ट करना पड़ता है, फिर ग्रासहॉपर ऑन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप ओपन करते हो फाइल. डायरेक्टली कभी भी नहीं होगी. और अभी तो क्योंकि हमने राइनो से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं था, तो इट डजंट रियली मैटर कि हम किस राइनो की फाइल में हम स्क्रिप्ट ओपन कर रहे हैं. बट आगे जाके जहाँ पे हम कोई ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा कि हम राइनो की फाइल भी सेव कर रहे हैं एक प्रॉपर अलग जगह पे, और उसके साथ हम ग्रासहॉपर की फाइल वो जो है वो हम सेव कर रहे हैं. दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है. देयर आर वेज टू मेक श्योर कि गड़बड़ ना हो, बट इट्स बेटर कि आपकी एक हैबिट बनी हुई हो कि जहाँ पे राइनो सेव हो रहा है वहाँ पे उसके साथ की ग्रासहॉपर की फाइल सेव हो. नहीं, वो इंटरनल डेफिनेशन इंटैक्ट रहती है, उसको कुछ नहीं होता. और अगर आप मल्टीपल फाइल्स पे काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पे राइट साइड से आप क्विकली उसके अंदर आप स्विच कर सकते हो. अच्छा, वो मैंने आगे एक्चुअली डिटेल में कवर करना है. इट्स जस्ट अ कंडीशन विच इज़ अ बूलियन वैल्यू जो कि सॉर्ट ऑफ टेस्ट कर होता है
is one value greater than the other or smaller than or equal to, ये चीज़ हमने आगे हमने करनी है डिस्कस। ये मैं सिर्फ सॉर्ट ऑफ एक टिप ऐड कर रहा था कि हम इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं, बट ये बिकॉज क्योंकि वो उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि व्हाट इफ वो आगे पीछे के टाइम्स हैं, लाइक रात 12 बजे के आगे पीछे के टाइम्स हैं, तो देन दैट मीन्स के रादर देन यूजिंग दैट ट्रू फॉल्स वाला कंपोनेंट वी नीड दिस एब्सोल्यूट वाला कंपोनेंट। This concludes our introduction.